Minister for Road, Transport and Highways, a leading visionary who has transformed the road network of the country, one who inspires us to become, Annadhata to Urja Data, one who is passionate about biofuels, one who is passionate about biomobility, is expected any moment in the hall. So I request all delegates to please rise and welcome him with a round of applause. Let us put our hands together and welcome him. Let us welcome Honorable Gadkari ji with put our hands together. And I request Honorable Gadkari ji to please come forward and light the lamp. I also request Sanjay Bandyopadhyay ji, Manoj Singh ji, Vikram Gulati ji, Sulajja ji, Atul Mule ji, and Hemant ji to please come forward. We'll light the lamp. And then I request all dignitaries to please come on the dais after lighting the lamp. IFG has a very strong transport committee led by Shri Sanjay Bandyopadhyay ji, and there are different forums under that committee. So, Honorable Minister, welcome. Accelerating towards the future of sustainable and green mobility. That is the theme of this conference, today's conference IFG has organized. And the idea was basically to talk about all sectors of transport, including automobile, the aviation, shipping, railways, and how we are moving towards sustainability and green. When we were, almost 10 years ago or 15 years ago, there was hardly any green mobility witnessed in India, or we were not experiencing such a transformation in India. But now we are at E20, 20% ethanol is blended with petrol. We are moving towards e-mobility, EVs penetration, EV percentage is increasing by the day. There is a lot of, other initiatives which government has taken. Railways has gone almost 100% electrification from diesel. We are witnessing some movement in aviation also with a target of 1% blending of SAF by 2027. Even in marine, we are looking at certain, targets by blending green fuel. So this is the kind of landscape we are witnessing now under the able leadership of, our Honorable Prime Minister. And then we are also happy that we have always been, we have always been motivated and inspired by Gadkari ji to go for green. So biofuels, he has been pushing a lot, and green mobility also, he has been inspiring us to, create certain, roadmaps for that particular sector. So without much ado, I'll request Mr. Sanjay Bandyopadhyay ji to please welcome Nitin Gadkari ji with a flower bouquet. Sanjay Bandyopadhyay ji is the chairman of IFG's Green Transport and Mobility Committee, and he was the former chairman, Inland Waterways Authority of India, and held various positions in the government. I now request Shri Vikram Gulati ji to present a bouquet
to Shri Manoj Kumar Singh, CEO, UP State Transformation Commission, and the previous Chief Secretary of Uttar Pradesh. Thank you. So now I invite Sanjay Bandopadhyay ji to please deliver the welcome address as Chairperson IFG Green Transport and Mobility Committee. Respected Honorable Shri Nitin Gadkari ji, Union Minister for Road Transport and Highways, my colleague, batchmate Manoj Kumar Singh ji, Madam Firodia, Mr. Gulati, Mr. Mule, Mr. Ganju, Mr. Kabir. I welcome all of you to this 2 days conclave. We stand today at a point where the convergence of energy transition, technology disruption, and India's agrarian genius gives us a once-in-a-generation opportunity. We need not copy the West blindly, but we should write our own green mobility story. On the demand, now coming to the demand side trends, while the global trend is focusing on deep sea wind, massive battery storage, but India is carving a multimodal niche by integrating its agrarian strengths into national fuel mix. If you see the global demand landscape, the global efficiency and costs are reducing, and there are many trendsetters in this, especially on the renewable capacity. In the biofuel, the global market stands at $141 billion in 2025, projected to reach $272 billion by 35, which is a CAGR of 6.8%. And this is not growing only on subsidy, but it's a structural growth based on increase in efficiency. The EV batteries, the cost revolution is real. The battery pack prices have reduced down by 8% year-on-year from $108 per kilowatt hour in 25. It has reduced by 8%. The LFP chemistry versus the NMC is competing among themselves. In China, the EV penetration is at 45 to 50% of new car sales in 2025. Goldman Sachs projected the battery prices approaching $80 per kilowatt hour by 26, and the tipping point is that the internal combustion engine and the EV cost parity from the well to the wheel has already been reached. And as you must have read, that we have reached a point in which the CO2 emission and the greenhouse gas emission have plateaued for our country, which is a very good news. The green hydrogen cost is falling towards $2 to 3 per kg in resource-rich regions in the world, and that may be a source for future for which we will have to plan. Sustainable aviation fuel, the lead has been taken by the European Union from 2% in 25 to 6% by 30, and this, watching this, in our country also we have to set a trend. Now on the Indian growth trajectory, the ethanol blending, we have achieved 19.2% of blending, and recently we have notified the E20 petrol with an octane number of 95. The electrical vehicles, India crossed 2.3 million EV sales in 25, 80% overall market share. For two-wheelers, for three-wheelers, the demand is increasing, and with the recent global incidents, it's increasing day by day. SAF, we are targeting 1% blending by 27,
and increasing to 5% by 30. This is target estimated and the target. Let us see how do we reach there. And recently the NTPC Honeywell has partnered for eSAF production to improve this sector. Railway has achieved 99.6% of broad gauge network electrified in early 26. And the hydrogen train trial has also commenced, which we say is the fuel of the future. Green hydrogen demand also increases as we go forward, and we can never forget it. So, whether India will blindly follow the global trend because technology is the trendsetter, or we will create our own. Of course, we'll create our own. And we have a multi-fuel and multimodal strategy, ethanol and biodiesel in road transport, bio-CNG, maybe city buses, auto fleets, generator sets, green hydrogen in ports, shipping and aviation in medium term, and solar-powered EV for the last mile connectivity, both two-wheelers and the three-wheelers. We can learn from Brazil, which has used E100 economy built on sugarcane, and India can do better because with sugarcane plus agriculture waste plus municipal solid waste, we can achieve this target. We can also learn from Indonesia, which is using the B40 biodiesel mandate in force, and B50 is rolling out by 26. If these countries can achieve it, why can't we? Now coming on the supply side, the Urja Data concept is farmer is the producer. India has decentralized energy supply because we're such a large country, it's difficult to reach to every village. And we now have a breakdown. Solar is installed capacity is 150 gigawatt, wind is nearly 56 gigawatt, large hydro is 51 gigawatt, bioenergy 11 gigawatt, and nuclear is nearly 9 gigawatt. With the agrarian supply chain under PM Kusum significant solar pump, this energy supply is increasing. Solar is now the cheapest electricity, as I told in the Indian history. It has reached the parity of the IC engine. The offshore wind is also a source. Nearly 30 gigawatt has been installed. We have a unique advantage in the agrarian supply sector. The agriculture residue, India generates nearly 686 million ton per year of crop residue. Even 30% utilization can increase the bioeconomy by a great extent. There are so many cattle. The bio-CNG is the supply from these cattle. Sugarcane, 50 million tons of ethanol production potential, and this can be used in the mud feeds. Municipal solid waste, 62 million tons per year is generated. This is again a source, and Indore and Pune cities are already using it to convert it into CBG. Green hydrogen supply has increased under the mission, and 3 major ports, Kandla, Paradip, Tuticorin, have designated as hydrogen bunkering units and a green hydrogen corridor. So now coming on the policy on supply side, we should establish a green fuel supply authority which will coordinate among all the green energy, that is biofuel, bio-CNG, green hydrogen, RE-based EV, which will optimize the supply of the green energy into the system. And it can be on viability gap funding, depending on the highest efficiency sector. We have to match the demand and the supply. I spoke about the demand side. I also spoke about the supply side. Now we have to intelligently match the demand and the supply to be the best in the world, which will increase the efficiency. So we require integrated planning, digital matching,
we have to focus on green energy corridors, because like Rajasthan and Gujarat have higher source of solar, but it has to be, the sources have to be connected to grid. So more smart grids are required. Infrastructure has to be optimized. The cost has to be rationalized on various sectors. Some of the cost optimization levers can be the bio-CNG economies of scale. The cost of CBG falls from 85 rupees per kg at 500 rupees a kg per day to 48 or lesser. The mandatory blending can be brought in some of the states. The carbon credits can be used. The wayside highway solar projects have also taken up. They can be improved. So finally, there has to be a policy recommendation as an outcome of this two-day conclave on the green transport zones in 50 cities, so that we can use the bio-CNG, EV charging, and for future the hydrogen in such cities, 50 cities. So this, now coming to the various funding issues. In the funding, we have to have a green energy fund specifically for this. Like when the power sector came, there was a PFC. For transport sectors, funding had come. Similarly, the funding of the green energy transition requires sovereign green bonds, multilateral banks, as well as we can establish a green transport finance facility, which will help funding of the demand chain and the supply chain. And finally, coming to the points, we must have, as the output of this conclave, we should have a 5-year green transport action plan. We'll collect all the suggestions and prepare a 5-year green action plan. So I request all of you to help us to develop the concept of the National Green Mobility Mission, the Green Transport Finance Facility, and the Green Transport Zones. If these are done as an outcome of this conclave, then it will be a great achievement for this 2 days conclave. I again welcome all of you and Honorable Minister to this event. Thank you very much. Thank you, Bandyopadhyay sir. I think he has clearly indicated 2 points. One, there has to be some separate governance and funding mechanism to drive bioenergy and the sectors associated with it. Till the time this bioenergy is subservient or, to the consuming ministries, it will not receive the proper attention. So in this August forum and under the, chairmanship of the Honorable Minister here, I will propose that we should have a separate governance mechanism, whether it's a department, mission, ministry, which drives all forms of bioenergy, including solid, liquid, and gaseous fuels, and also derivatives out of bioenergy. There are immense. So unless you have a separate sort of governance mechanism in place, it will not receive that attention, because consuming ministries have their own priorities. So they will not, look towards this sector with a, with a priority. So thank you, Bandyopadhyay ji. Now I request Shri Vikram Gulati ji, the chairperson of IFG's Biomobility Forum, country head and executive vice president, Toyota Kirloskar Motors. We work closely with him and his team on, promoting bioenergy, particularly for use in vehicles. They have also brought a flex fuel vehicle for demonstration here. We can have a look at it. And they are also providing test rides to some of the guests. So I'll request Shri Vikram Gulati ji to please come and address the gathering. Honorable Minister, Shri Manoj Kumar Singh ji, dignitaries on the dais and off the dais, ladies and gentlemen, friends from the media, a very good morning. First of all, coming from the automotive side, we are all aware the pace at which our industry is growing. It's a good news for the economy, but it also brings the challenge of energy. And rightly sensing this, and projections from
global renowned energy agencies like IEA, which said that, going forward, India would be the largest importer of fossil fuels. In the next few years, it is projected that additional demand from fossil fuels, primarily, almost to the extent of 33%, is going to come from India. If one projection is to be seen from the area of cars, the amount of energy use which we are seeing now is going to quadruple 4 times by 2030. And we are all aware that today, as we sit, how vulnerable we are. Today, we import 87%. It is not only about the impact on our current account deficit, fiscal deficit, and economic health, but now it's also visible. The availability itself is a challenge. It can bring the entire economy to a grinding halt. Recent developments have also shown us that we cannot be dependent on key components or key parts that go into making the green transition for our economy. We have to be self-reliant. And at the outset, I would like to place my heartfelt gratitude to the Government of India and its progressive policies over the last few years. We have seen that the EBG ethanol blending program that came in, had it not been there today when we are at E20, just imagine the crisis we would have faced. And of course, one person in particular that we have to really pay our immense gratitude is the Honorable Minister, Minister Gadkari ji. He has been the singular voice creating awareness for the last 22 years. He has been singularly responsible for the fact that we are at E20 today. And I would not hold myself back from saying that he has been the person who has motivated the industry to take bigger and bigger challenges. It was him who brought in BS6 5 years ahead of time. When we said, sir, it can't be done. It was him who motivated us to bring FFV when there is no policy clarity. Today, thanks to Honorable Minister and of course Ministry of Road Transport and Highways, the entire industry is ready with flex fuel vehicles. This is going to be the solution for the country going ahead, along with other green technologies. He's been promoting hydrogen, he's been promoting EV. Today he's come in an EV. He travels only by green vehicles, setting an example. So I think for all of us, it's time, like very rightly mentioned by my colleague, for the country to now take note of where we are, how vulnerable we are. We cannot shift from one vulnerability, which is dependent on energy sourced from Middle East, to another vulnerability of depending on import of critical minerals, critical parts that go into green technologies like the electric powertrain. We have to work together to bring all of these technologies, but with Make in India, being self-reliant, and I think with able policies of the government, this can be done. I must also take this opportunity to recognize the kind of work, pioneering work, I would say, that was done by the government of Uttar Pradesh under the able leadership of Shri Manoj Kumar Singh ji when he was the Chief Secretary. Very progressive policy, which I think also influenced many states to look at electrification in a much broader tech-neutral way. That is the way to create local ecosystem, because amongst all electrified technologies, the powertrain parts are common. And that is a step towards basically encouraging investments in a faster way. It is a way of encouraging the fact that we do not remain reliant on imports. With those limited words and final submission that as an industry, we are fully committed to play our role to a transition towards a greener future. Like my friend said, a future that comprises of all green technologies, whether it's electric, hydrogen, ethanol, hybrid, plug-in hybrid, because all these technologies lead us to a same destination, a destination of a Viksit Bharat, a destination of a self-reliant Bharat,
a destination of a developed country which is also energy self-reliant. With those limited words, I would again like to place my gratitude to the Honorable Minister and Shri Manoj Kumar Singh ji for gracing the occasion here today in the inaugural. With that, I'd like to thank everybody for giving me a patient hearing. Thank you. Thank you, Gulati Saab, for your eloquent words. So I would like to, identify a couple of, dignitaries here. We have Dr. Vidya Murukumbi sitting on the front row. She is our past president, and she was previously the chairperson of Renuka Energy, Renuka Sugars, and now she is leading a company called Ravindra Energy. They are also into, solar, and now they are also going into electric trucks. Thank you. And we have Dr. C.R. Shekhar, Director CRRI here, with whom we are signing an MOU today. So I'll keep on identifying some good, guests during the course of this inaugural function. Now I request the chairperson of IFG Electric Vehicle Industry Forum and founder and CEO of Kinetic Green, Madam Sulujja Firodia Motwani, to please come and deliver her address. She is a prominent figure in not only industry, in electric, vehicle segment, and even in other philanthropic activities. She has also been the chairperson of FICCI Electric Vehicle Task Force, and brand ambassador for Save the Girl Child Initiative, and many we see her quite actively participating in the industry advocacy programs and the social development programs. Please. Our Honorable Chief Guest, Shri Nitin Gadkari ji, our guest of honor, Shri Manoj Kumar Singh ji, our special guest, Shri Sanjay Bandopadhyay ji, all my eminent colleagues from the industry on the dais and in the audience, friends from the media, and ladies and gentlemen, a very good and green morning to all of you. It's a pleasure to see all of you here, joining this wonderful cause. And let me begin by congratulating IFG on this special Green Transport Conclave and overall all the work that IFG has been doing. I've been part of this forum for more than 5 years now, and under the leadership and guidance of Nitin Gadkari sir, support of Vaibhav Dange sir, the entire team has been doing wonderful work, whether it's to promote green transport, green energy, and I think they are playing a wonderful role in not just policy formation, but also supporting to the industry. I have seen many forums where there is a lot of talk and a lot of dialogue, but what I find special about IFGE is that they are actually working with the stakeholders and helping them to promote the effort and bring it to fruition, and I really appreciate this approach. So congratulations to IFG and all the work they are doing. I'm going to keep my remarks brief. I know we are very keen to hear our very special chief guest. But let me just say that this is a very positive and glorious moment for green mobility and especially e-mobility. I stand in front of you with a lot of positivity and enthusiasm. In the last 5 to 10 years, I think our country has made great progress towards e-mobility and towards green transport. And as my colleague Vikram said, all the credit really goes to our honorable chief guest today, Nitin Gadkari ji. Over the last 10 to 15 years, he has been the one to make the call to action to the industry, to move towards reduction in emission, to move towards EVs, to move towards new technologies which are green in terms of, transport and sustainability. And it is his efforts and his leadership and dynamism with which many people have taken this action. If I were to give an example of Kinetic Group itself, and I founded a company called Kinetic Green, which is our EV venture. Gadkari sir has been a very big support to us. Recently, we launched a very special vehicle called e-Luna. Many of you may be familiar with Luna. You may have used it in your early days. And sir had come to bless us when we introduced the e-Luna, which is a very special EV made for the common man. And this vehicle now we have sold for more than 50,000 over the last few months since its launch. And it's a unique vehicle that is being sold not only in cities but in villages, in rural areas, by farmers, used by milkmen, used by delivery, gig economy. So it's becoming a wonderful livelihood vehicle, saving a lot of fuel
and increasing the earnings for people at the bottom of the pyramid. So e-technology is not only helping to reduce emissions, but also improving livelihoods of people and helping them to have, a better economic status. Here I'll also call out the work done in UP. Sir, Kinetic Green had done a very special project where we gave 10,000 e-rickshaws to cycle rickshaw pullers as a means of better livelihood. Once again, it's on the cusp of green transport and green livelihood. We're currently doing a program in Maharashtra where we are giving 10,000 pink e-rickshaws to women to be again self-employed and to bring green transport. So what I'm trying to say here is that green mobility, e-mobility is not only reducing emission, but also improving lives of our citizens, helping them to earn better, have better health, and a better life overall. So very proud of being part of this transition. As a country, from just being at 1% EV, 5 to 8 years ago, 7 years ago, we're now at 8% EV. And then I think that's a significant progress we have made. In some of the sectors like three-wheelers, EV has now become dominant. If you include the e-rickshaws, which are very prominent as a last mile connectivity solution in our country, electric three-wheelers are now outselling ICE three-wheelers. I think that's fantastic. That means that there is a wide preference for this technology. People are liking that it costs less and it's green. Similarly, in two-wheelers, in electric scooters, in e-crossover bikes like e-Luna, there is a great demand that we are foreseeing. What is unique now is that people are considering EV as a choice. It's not only the government, not only the industry which is promoting e-technology, but people, when they're buying a new vehicle, are thinking of electric as an option and exploring it and going to the showrooms and talking about it with their friends and with their family members. This is the big change, that e-mobility is now becoming mainstream. It has entered the homes and hearts and minds of our middle class and lower middle class India. And this is what's going to drive the transition in the coming years. Our Honorable Prime Minister has set a goal for us to have 30% EV by 2030. And the question I would like to pose to all of you today is whether we can do it. I believe that we can. I think that from this 8 to 10% that we are, now the journey to 30% will be easier because a lot of the hard work has been done. We have gathered momentum. Like I would like to say, this train has left the station. E-mobility or green mobility is now becoming mainstream, and it has to reach its final destination. For us to reach this 30% EV, I think there are a few things that as an industry, with the support of our leaders, we can focus on to achieve this goal, a near-term goal of 30% EV. First and foremost, I think that the attention now has to focus on ecosystem creation, charging infrastructure. 2 and 3 wheelers are last mile connectivity solutions. They can be charged at home. For those who are buying electric cars or those who are buying other forms of long-range EVs, need charging infrastructure on the highways. And our Honorable Minister Gadkari sir has already set in motion this work. But I think that is one big change that will help the penetration of electric mobility in cars. It will no longer be chicken and egg. It will kind of go hand in hand. Similarly, as we discussed earlier, for the other form of long-range transport vehicles, there is a room for alternate solutions. For 2 or 3 wheelers, it will be always electric because it's convenient, it is light, it is affordable. But for long-range trucks, for cars, for other commercial vehicles, India has to find its own solutions and create an ecosystem for other forms of green transport technologies. This will really help us to get to that 30%. The second thing I would think that is going to be useful now is mandates. We have all heard that Delhi government has proposed in its new EV that it will mandate that from 2028, only electric 2 and 3 wheelers can be used in the roads of Delhi. It is a bold move, and in a democracy like India, mandates have not always worked. But I think time has come. If we move from diesel to petrol to CNG, then for public transport, why not electric? And I think some such mandates will drive demand. And mandates can come in this direct form, or they can come in the form of government purchase fleets, should be only electric, waste management fleets, bus fleets, cars for the government use, within the government campuses, only electric vehicles should be used, last mile delivery vehicles should be
push to be electric, we can bring such mandates, and I think that will drive demand, sir. And I think these are the two big things that will really help us: infrastructure creation and mandates. And last but not the least, for India to be truly Vikasit and truly an e-mobility leader, we have to not only become consumers of EV, but producers of EV. There is no doubt in my mind that people will want to buy electric and green vehicles because they will cost less, there will be less running cost. But it's important that we make the technology in India. We don't want to be an importer of technology. If we truly want to be leader, then we have to own the entire supply chain and localize it. India is already focusing on making India EVs. We have to focus more on the entire supply chain. So the raw materials, the critical minerals, battery cells, motor, magnets in the motor, semiconductors, the entire supply chain has to become Indian. We have to be self-reliant. And we are working in that direction. The policies of the government have been very forthcoming and very positive. But we need to remember that we want to be leaders in EV creation and not only in EV use. So this is what I feel if we focus in the next 5 years. One is on infrastructure and charging ecosystem creation. Second is on mandates for driving 2- and 3-wheeler demand and bus demand. And third is on truly self-reliant supply chains for green and e-mobility. I think there's no looking back, and certainly the future will be green, it will be electric. And India always says, jo dikta hai, wo bikta hai. So as more and more EVs come on the road, more and more discussion around EVs will form. People will form a positive opinion, and that will lead to further momentum. So as pioneers in this space, all of you who are here, and our guide, Gadkari sir, and all the others, help us to create that critical mass. And I'm very bullish, I'm very optimistic that we're on the right track and the future is green. Thank you very much. Thank you, ma'am. I'll identify a couple of more, dignitaries here. Mr. C.K. Jain was here, the president, GEMA, Grain Ethanol Manufacturers Association. Sorry, please come forward. So we also have Mr. Dilip Khare from Global Biogas Association, representing them here. So now I request Shri Atul Moole ji, he is the chairperson of our Bioenergy Committee. Praj and IFG are synonymous because you have been part of this journey right from the day it was established. And Praj has been a great support to IFG's activities, physically, morally, materialistically, whatever you call it. And Praj is the largest bioeconomy company in India, particularly from the technology side. So they have been, exporting this technology and equipments to world over. And they are involved in all sorts of, bioenergy mobility, green energy, green mobility initiatives. E20, they are the pioneers in ethanol production. And even on SAF, they had done the first, pilot test, on one airlines, I think Air Asia. And in other initiatives also they are working actively. So I request Atulji to please deliver his address. Good morning, everybody. Honorable Gadkari sir, dignitaries on dais, dignitaries of the dais. It's really an honor for me to be here again on this occasion. It's a maiden occasion of a green conclave, which IFG, we have been cherishing this for almost last 1 year, that we'll have a green conclave done here on a mobility. So I want to start my session here saying that so today Gadkari sir has come on an electric vehicle. And I would say that whenever there is always question comes that whether electric, whether hydrogen, whether ethanol, whether CBG, he always say it is going to coexist. And he's a really live example of demonstrating it. So for instance, he travels in an ethanol car, he travels in a hydrogen car, and today I have seen him travel in the electric car. So really, hats off to you, Gadkari sir. On the green energy conclave, I want to in fact also congratulate IFG management here, and especially Vaibhav ji, Sanjay ji here, for completing over a decade of establishment on IIG and touching all sector of the green energy. Now today the green energy is a buzzword from an IFG perspective, but I want to take some more thing here is that today it's a green energy
And now it is going to be more of an energy security. The geopolitical scenario has changed in such a way that today it is becoming a green energy as a energy security and it's a energy sovereignty. And that's where the aspect is very important from an energy perspective, energy security. What we have seen, as Vikramji also mentioned about that, ethanol blending program 20%. The whole program was driven very as a single-handedly probably and very aggressively by Honorable Gadkari sir, getting all stakeholders together. And it was a very Herculean task. I have seen him very closely during the COVID time. He was arranging all digital meetings with all the stakeholders, the ministries, and getting them all together and making this program success ahead of time. The vision of our Honorable Prime Minister was 2030, 20% program, but it has come to 2026, 25. And today that ABP 20 program has seen an Honorable Prime Minister during his recent speech, he's mentioned that we have saved almost like 45 million barrel equivalent of crude only because of the ABP 20 program. Now the next question comes, after doing everything there, still there is a surplus capacity for ethanol, and that's why probably Mr. Jain is here and ISMA team is also here, that what is to be done on that surplus ethanol. And here's the time we are talking about the energy sovereignty, we are talking about energy security, we are talking about the green side of it. So can we have a new application? And today probably if we would have had this application development as Gadkari sir was pressurizing or maybe pushing us for last 18 months to 24 months, going beyond ABP 20, whether it is a flex fuel vehicle, whether it is diesel blending, alcohol blending diesel or sustainable aviation fuel, scene could have been different. But nevertheless, what we have learned over a period of time is that the three things, the feedstock, application and capacity creation. There are three major important things for any green energy or for that matter any ecosystem. And today, if we would have had that application development thing done probably a couple of years back, the flex fuels are ready, the automobile industry is ready, OMCs probably are ready with E85 or E100, but there are certain challenges which needs to address. But application development is very important. Capacity creation with all government support, already on ethanol side is already been done. On a CBG side also it is getting done in a very systematic way. But then the time has come, the feedstock, application development, capacity creation should go hand in hand. And that's why in fact Vaibhavji was also mentioning in a break here that a clear roadmap, sir, coming from you, for a 10-year clear roadmap talking about all this feedstock, application and capacity creation can go hand in hand, and which can give us clear milestones, and then all ecosystem holders sitting here will drive those ecosystems on those milestones accordingly. Now, just to give some numbers, as Honorable Prime Minister said that 45 million equivalent of a crude oil saved. Now, today we have a surplus capacity of 600 to 800 kiloliters of ethanol. If we really move to the flex fuel side, there is an application development already happened, vehicles are already ready. The ecosystem, the automobile industry, OMC, CIM is asking certain concessions, benefits equivalent at par with the electric vehicles. Probably it will be also under discussions. The one more thing which is very important is now, Bandyopadhyay sir, you talked about the SAF policy of a government from a 1% blending to 3% or 5% by 2030. But which has come from a green side of it. It's a carbon intensity reduction. But from an energy sovereignty side, can we really create a program, what we have succeeded like ABP 20 program, can we have a SAF 10 program? So even if you do a SAF 10 program now, so the requirement of ethanol from ATJ will be roughly around 400 kiloliters by 2030, and we have a surplus ethanol available. So if you can really, work together as an ecosystem to our and with and guidance of Honorable Gadkari sir, the SAF 10 program can be a reality from today onwards by 2030. We have a successful ABP 20 program, SAF 10 program also can drive. So is the case. Honorable Gadkari sir, from a technology perspective, they are always behind us to develop a technology for diesel blending. And today I am telling you a very successful story that we have already succeeded on a diesel blending program along with one of the OMC as well as the CIM and automobile manufacturers. We have tried this on up to 10% blend, but then there are discussions happening from 2% to 10% blend. Again, under the guidance of Gadkari sir, Tractors Manufacturer Association, Road Construction Machinery Manufacturer Association, Static Engine Manufacturer Association, everyone has started closely working, and it is not only the green now, it's a green and energy sovereignty together, and which is going to go hand in hand. And where I feel again, then IFG, Ganju Sahab and Vaibhavji will work very closely from industry side, technology side, and on stakeholder side. So thank you very much for this opportunity. Thank you once again. Thank you, Atulji.
Uttar Pradesh is one of the major hubs of bioenergy in the country. Most of the ethanol is produced in that state. We see a lot of biogas plants, compressed biogas plants coming up and already set up in UP. We see a lot of biomass pellets and briquettes plants coming up in Uttar Pradesh. And Uttar Pradesh has one of the best bioenergy policy in the country. In fact, even for biomobility, if you remember, they had introduced a policy for hybrid, there was a road tax exemption for hybrid. So that is the kind of progressive role, Uttar Pradesh has been, taking in this particular sector. And we have been always, grateful to Uttar Pradesh for supporting our activities. In fact, even in this room only, when we organized the first CBG conference, when CBG was just in its initial steps, Avnish Avasthi ji came here and as a guest of honor in that program. Later on, Shri Narendra Bhushan ji, who was the additional chief secretary, has been regularly participating in our programs, and they were the host state for our flagship event IBET, and they invited us in 2026 to organize India Bioenergy and Technology Exhibition in Uttar Pradesh, Greater Noida. So that is the kind of importance they attach with this sector. So we are highly honored and grateful that Shri Manoj Kumar Singh Sahab, who is the presently as Chief Executive Officer of Uttar Pradesh State Transformation Commission, and who was previously the Chief Secretary of Uttar Pradesh and has been, in various positions in Uttar Pradesh and Government of India in different positions as the officer, as senior officer. So we are honored that he is with us as guest of honor for this function. So I request Manoj Kumar Singh Sahab to deliver his address, keynote address. नमस्कार, माननीय मंत्री जी श्री नितिन गडकरी जी, जो पूरे देश के लिए कनेक्टिविटी को दूसरे लेवल पर ले जाने का जो विज़न इन्होंने देश के सामने रखा है, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा इनके इस विज़न से सीख ली है। और आज की तारीख में पूरे देश के जितने एक्सप्रेसवेज हैं उनका लगभग 55% एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे यूपी के पास है। और अभी गंगा एक्सप्रेसवे जो 594 किलोमीटर की लंबाई में बनकर तैयार है, वो 29 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उद्घाटित किया जाने वाला है। और उसके बाद यूपी का शेयर एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे में ऑलमोस्ट 60% होगा। माननीय मंत्री जी का जो विज़न एक्सप्रेसवेज और कनेक्टिविटी के ऊपर है, उसी तरह के नए इनोवेटिव आइडियाज़ इनके नए फ्यूल के ऊपर और फ्लेक्सी फ्यूल वगैरह के ऊपर है। मैं सर के घर पर देखा हूँ कि इस तरह की गाड़ियाँ खुद से ये काफ़ी लंबे समय से फ्लेक्सी फ्यूल और इस तरह की गाड़ियों में चल रहे हैं, जो कि बाकी लोगों के लिए भी एक प्रेरणा है। साथियों, ये कहा जाता है कि 2050 तक लगभग 70% पॉपुलेशन सिटीज़ में आएंगी और जो 80% रिसोर्स कंज्यूम करेंगी और 80% इकोनॉमी को वो कंट्रीब्यूट भी करेंगी। बट आप इमेजिन करिए, आज की तारीख में यूपी जहां सिर्फ 24% कार्बनाइजेशन है, अगर ये 70% पे पहुंचता है तो किस तरह की मोबिलिटी और किस तरह की प्लानिंग शहरों में चाहिए होगी। ट्रांसपोर्ट लगभग 25% एमिशंस जो ग्रीन हाउस गैसेस का है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए एक ये बहुत अहम सेक्टर है अगर हमें क्लाइमेट के जो गोल्स हैं उनको अचीव करना है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये क्लाइमेट गोल को अचीव करने के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन और फ्लेक्सी फ्यूल और इस तरह की शुरुआत की गई थी। और हम लोगों ने देखा है कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं क्लाइमेट के ऊपर, वो लीडिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ ही उसको ड्राइव करती हैं। मैं बहुत क्लोजली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में काम किया हूँ प्रकाश जावड़ेकर जी के साथ और अनिल माधव दवे जी के साथ, एंड आई वॉज द लीड निगोशिएटर इन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इंडिया की तरफ से। और वो जो रेफ्रिजरेंट में CFC यूज़ होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उसको फेज आउट किया HCFC में, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में, फिर HFC में किया और आज का लेटेस्ट जो HFO है उसमें हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन्स में ला रहा है। तो इसमें आई हैव सीन कि इंडिया और चाइना 2 लीडिंग मैन्युफैक्चरर थे और इनके इंडिया में 5 इंडस्ट्रीज़ ये बनाया करती थी रेफ्रिजरेंट,
उनको कैसे ये फंड करते थे और फंडिंग के बाद वो केमिकल्स का ट्रांजिशन होता था। इलेक्ट्रिक व्हीकल भी इसी तरह के क्लाइमेट गोल को अचीव करने के लिए आया, लेकिन अभी जो मेजर कंट्री हैं वो इन सभी क्लाइमेट एग्रीमेंट से अपने आप को बैकआउट कर रहे हैं। उसके बाद इनका क्या डायरेक्शन होगा, क्या स्पीड होगा, ये एक देखने और सोचने लायक चीज़ें होंगी। लेकिन आज की तारीख में इलेक्ट्रिक व्हीकल अब सिर्फ एक क्लाइमेट गोल का या ऑब्जेक्टिव का मोहताज नहीं है, बल्कि अब इसमें इस लेवल की इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज़ की आ चुकी है और लोकलाइज पॉल्यूशन को सॉल्व करने के जो इसमें कैपेसिटी है और जिस तरह की टेक्नोलॉजी है और जो एनर्जी सोवरेंटी की बात हो रही थी, जो एक ये मौका देता है हमें ऑयल का जो 83-84% इम्पोर्ट है, ये डिपेंडेंस को कम करने के लिए, उसमें अब कोई भी कंट्री बैकआउट करे या ना करे, इंडिया की रफ्तार इसी दिशा में चलनी है और इसमें हमें और आगे बढ़ना है। साथियों, 2004 से लेकर 7 तक मैं डायरेक्टर था हैवी इंडस्ट्री में, और हैवी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑटोमोबाइल पॉलिसी बनाता है और चलाता है उसको, और मेजर पार्ट फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में स्पेसिफिकेशन वगैरह के होते हैं। 2006 से 16 की जो ऑटोमोबाइल पॉलिसी लिखी गई थी उसमें मैं काम कर रहा था साथ में। संतोष मोहन देव जी उस समय मंत्री थे, एंड आई टेल यू, उस समय जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे तो एक भी कंपनी ऐसी नहीं मिल रही थी चाइना की जो आइस इंजन में कोई नाम रखती हो। चाइना का आज भी कोई नहीं बता सकता कि आइस इंजन बेस्ड कोई भी 4 व्हीलर है जिसको दुनिया खरीदती है। वो नहीं कॉम्पीट कर पाए थे। तो व्हाट दे डिड, दे जस्ट पुल्ड देमसेल्फ बैक, और फिर 10 साल तक उन्होंने इलेक्ट्रिक पर काम किया, और आज की तारीख में दुनिया में जितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक रही हैं उसका 60% चाइना की बिक रही हैं। तो वो पिछले 15 सालों तक उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरीज पर काम किया, और आज की तारीख में वो इस रेस में सबसे आगे हैं। इसी तरह हम लोगों को भी अपनी टेक्नोलॉजी इसके लिए डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। बायोफ्यूल एक बहुत अच्छा ऑप्शन हम लोगों के लिए है, खास करके यूपी के कॉन्टेक्स्ट में जहां लगभग 126 शुगर मिले हैं और सबसे ज़्यादा गन्ना और सबसे ज़्यादा इथेनॉल देश में पैदा करते हैं। बायोमास का भी प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। इस कॉन्टेक्स्ट में इथेनॉल बेस्ड फ्यूल जो भी है उनको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि ईवी में एडॉप्शन के लिए जो एक रेंज की एग्जाइटी रहती है वो चार्जिंग स्टेशन न होने की वजह से है, और इसमें कोई, जैसा आपने सुना अभी चिकन एंड एग, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चिकन एंड एग का डिस्प्यूट है, क्योंकि ये ज़रूरी है कि हमें पहले चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए पब्लिक फैसिलिटी इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। यूपी ने जो एक्सप्रेसवे बनाए हैं उस पर लगभग 1.5 साल पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस के लिए एक बिड निकाला, और आपको यकीन नहीं होगा उस समय देश में जो भी बिड निकल रहे थे तो उनका 18 से 19 रुपया पर यूनिट चार्जिंग के लिए आ रहा था बिड, और हम लोगों का वो 9 रुपये आया पर यूनिट, जहाँ की 7.5 रुपया चार्ज है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों आया ऐसा? क्योंकि बिहाइंड द मीटर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, ट्रांसफार्मर वगैरह, उसकी कॉस्ट हमने कही कि ये हम फंड करेंगे, और लैंड 1 रुपये के लीज पे देंगे आपको। तो अगर इसको आप पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मानकर बनाते हैं और एक साथ 40,000 50,000 चार्जिंग स्टेशन हम पूरे देश में लगाते हैं, तब इलेक्ट्रिक व्हीकल का पेनिट्रेशन और जो 30% के टारगेट की बात है वो अचीव करना संभव हो सकता है। अदरवाइज जब तक ये असमंजस और डवाडोल की स्थिति रहेगी कि पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा कि चार्जिंग स्टेशन आएगा, हम वहाँ नहीं पहुँच सकते। ये एक बहुत मुश्किल सा तकाजा है। एक टेंशन इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड के बीच में भी रहता है, जैसा आपने अभी सुना। ये यूपी में एक पहले अभी हम लोग रजिस्ट्रेशन फ़ी लगभग 4-4.5 लाख का 100% वेव करते थे इलेक्ट्रिक व्हीकल में। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए भी हमने इंट्रोड्यूस किया था उसको। तो उस समय काफ़ी डिबेट हुआ था कि ये नहीं करना चाहिए, ये इलेक्ट्रिफिकेशन की रफ्तार को कम करता है। बट मेरा ये समझ है, वैसे गडकरी साहब से ज़्यादा इसके बारे में कोई और नॉलेज नहीं रखता, वो बताएंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि सिर्फ एक पॉलिसी इतने बड़े देश में नहीं चल सकती है, और जब तक हम 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जाएंगे तब तक इन सब चीज़ों को हमें ट्राई करते रहना चाहिए और बढ़ाते रहना चाहिए। उसी कदम में हम लोगों ने हाइब्रिड पे भी वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस माफ़ किया था, और उसके बाद हाइब्रिड हरियाणा और दिल्ली के सारे लोग नोएडा से खरीद रहे थे, और जितना रजिस्ट्रेशन फ़ी में हमने माफ़ किया था उससे ज़्यादा GST के रूप में स्टेट ने अर्न किया था। तो ये शिकायत एक रहती है कि आप इलेक्ट्रिफिकेशन को डिरेल कर रहे हैं, वहाँ एक इन्वेस्टमेंट हो रखा है।
बट दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑयल पे इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करना है, पॉल्यूशन को कम करना है, ये दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं। और दोनों ही अगर कुछ हद तक हाइब्रिड अटेन करता है तो ये एक एज ए ट्रांजिशन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो सकता है। मैं 2-3 बातें और कहूँगा और फिर अपनी बात समाप्त करूँगा। ईवी हम लोग पॉल्यूशन की दृष्टि से बात करते हैं, लेकिन ईवी उतनी ही क्लीन है जितना कि पावर ग्रिड क्लीन है। अगर हम सोलर से ला रहे हैं तब तो इसकी बात बनती है, अदरवाइज वो उस तरह की बात नहीं बनती है। ओवरऑल अगर आप लाइफ में आप देखेंगे तो जो इसका पॉल्यूशन का है वो बहुत कंपेरेबल सा रहता है। इसीलिए डीकार्बोनाइज करना पावर ग्रिड को उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना ईवी को प्रमोट करना है। बैटरी की सेकेंड लाइफ भी एक हिडन इंडस्ट्री बन रही है। जब हम 10 साल चलाते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो बैटरी की पावर बिल्कुल ख़त्म नहीं होती, वो 70-80% नीचे जाती है। उसके बाद में वो सोलर बैकअप, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और इस तरह की चीज़ों में, ग्रिड स्टोरेज, इस तरह की चीज़ों में यूज़ होती है, जो 5-10 साल तक इसको और सस्टेन करती है। तो हमें इस पर भी काम करना चाहिए। रोड वियर एमिशन, वो एमिशन एग्जॉस्ट से कभी कभी एक्सीड कर जाता है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो वेट होती है वो नॉर्मल व्हीकल से ज़्यादा होती है, तो रोड वियर की वजह से जो एमिशन आता है उसे भी अकाउंट फॉर करना चाहिए। फ्रेट इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो, जैसा आपने सुना, वो मुश्किल है अभी पैसेंजर इलेक्ट्रिफिकेशन की तुलना में, क्योंकि उसमें बहुत मैसिव बैटरी चाहिए। माइक्रो मोबिलिटी को हम इन द मीन टाइम बहुत तेज़ी से प्रमोट कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी बात आई कि जो पॉलिटिक्स ऑयल को लेकर थी और जहां हम सॉवरेंटी की बात कर रहे थे, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कंसंट्रेटेड पॉलिटिक्स क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर है, और उसकी अवेलेबिलिटी और भी ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। तो ये एक बहुत मेजर्ड स्टेप होना चाहिए कि हम एक ऑयल की जो डिपेंडेंस है उससे हटकर अगर हम क्रिटिकल मिनरल के डिपेंडेंस पे जा रहे हैं तो हमारे पास क्या उसके लिए और बैकअप हो सकता है। इसके अलावा मैं ये मानता हूँ कि बिहेवियरल चेंज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आप बैटरी चार्जिंग में ही ये देखते हैं कि फास्ट चार्जिंग अगर बहुत फ्रीक्वेंटली करें तो बैटरी लाइफ कम होती है, स्लो चार्जिंग अगर रात भर करें तो बैटरी लाइफ ज़्यादा बढ़ती है। इस तरह की आईईसी भी हम लोगों को लोगों तक ले जाने की ज़रूरत है। तो ऑन दी होल ये जो ग्रीन मोबिलिटी है, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक कार और इस तरह के इलेक्ट्रिफिकेशन की बात नहीं है, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें एनर्जी, अर्बन डिज़ाइन, मटेरियल और लोगों का बिहेवियर, ये सभी एक साथ इस पर हमें काम करना होगा। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सिंह साहब। एक आपने यूपी का एक चित्र हमारे सामने रख लिया और आप क्या कर रहे हैं इन सेक्टर्स में, बहुत बहुत धन्यवाद। एक MOU साइनिंग सेरेमनी रहेगी। सर, वी आर साइनिंग एन MOU विद CRRI for scientifically validating biochar blending with bitumen. तो ये हमारे कुछ मेंबर्स ने डिस्कस किया था, देन वी वेंट टू CRRI. आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर अंबिका behel and the director. So we had a detailed discussion on that, and they have already done some work on this. So we are now signing an MOU with them so that we can work together for scientific validation of this product, which can go into the bitumen. So we can bring the papers here. And I also request his team, Vinod, Dr. Vinod, Dr. Ambika and Rahul Saxena, who is our chairperson of Biochar Forum, to please come forward.
In fact, CRRI has already, developed a product. They have converted, through gasification bio oil, which they are blending with the bitumen, which was again Gadkari ji had motivated them and supported that initiative, and it has also already been licensed to many industry members. So. Without wasting any time now, so I'll request Nitin Gadkari ji, the Honorable Chief Guest of our conference, to please come and deliver his address. आदरणीय मनोज कुमार सिंह जी, IFGA के चेयरमैन संजय बंडोपाध्याय जी, सलूजा फिरोदिया जी, श्री विक्रम गुलाटी जी, श्री अतुल मुले, वैभव डांगे, संजय गंजू, उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, भाई और बहनों, सबसे पहले मैं IFGA को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आज के इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। मुझे बहुत खुशी है क्योंकि 2004 से मैं अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल की लगातार बात करते आया हूँ, पर कोई भी बात आउट ऑफ बॉक्स जब होती है तो वो लोगों को समझाने में बहुत कठिनाई होती है। सबसे अच्छी बात हुई ऑटोमोबाइल कंपनी के लोग यहाँ बैठे हैं। जब अटल जी की सरकार थी और प्रफुल्ल पटेल हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे, तो मैं आया था इनकी मीटिंग, प्रफुल्ल पटेल जी को लेने के लिए कहा था, तो सबने बोलकर इतना विरोध किया कि ये करने से कैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का नुकसान हुआ, इसका काफ़ी ज्ञानार्जन उस मीटिंग में हुआ था। अभी ये खुशी हुई कि अब सब लोग एक लाइन पर हैं और ये देश के इंटरेस्ट में भी है, क्योंकि इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम है वो स्मार्ट, सेफ एंड सस्टेनेबल, यही हमारा उद्देश्य है। और पॉलिसी यही है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री एंड इंडिजिनियस। और मुझे लगता है कि ये जो हमको आत्मनिर्भर भारत बनने की बात है, इसके साथ हमारा ये मिशन जो है जुड़ा हुआ है। अब प्रश्न ऐसा है कि आज हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए हम इसलिए खर्चा कर रहे हैं कि हम 87% हमारी एनर्जी जो है इंपोर्ट करते हैं, और इसलिए इसके अलग अलग प्रकार के आयाम हैं। पहला आयाम ये है कि क्या ये 87% एनर्जी जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, आज जो हमारे वर्ल्ड में जो अभी विशेष रूप से जो स्थितियां पैदा हुई, उसकी कितनी अड़चनें हम सब सेव कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, इसका अनुभव आप सब ने लिया, उसका वर्णन करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। और इसलिए आत्मनिर्भर बनना ये हमारे देश के हित में सबसे बड़ा उद्देश्य है। दूसरी बात यह है कि लोगों में ये चलता ही है, क्योंकि हम पॉलिटिक्स में हैं तो कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे विवाद होते हैं और 90% विषयों को लेना नहीं देना नहीं विवाद चलते रहते हैं। तो ये यहाँ भी है कि इलेक्ट्रिक चाहिए, कि फ्लेक्स इंजन चाहिए, कि हाइड्रोजन चाहिए, तो सब आएंगे तो हमारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इतने लोग जो काम कर रहे हैं, इससे और 100 गुना लोग भी आएंगे तो भी इस देश का इंपोर्ट कम करना बहुत कठिन है। और इसलिए इंपोर्ट को अगर अभी आज इतना करके भी 2 लाख करोड़ की तो इकोनॉमी नहीं बनी है, तो ये 22 लाख है। इसमें दो चीज़ें हमारे कंट्रोल की बाहर है कि पॉपुलेशन रोकने में कमियां हैं और ऑटोमोबाइल ग्रोथ। अब ऐसी स्थिति आई है कुछ घरों में कि लोग में रहने वाले लोग 4 और गाड़ियों की संख्या 7, 8 बढ़ती जा रही है। और अभी हमने जो स्क्रैपिंग पॉलिसी की है, अब उसका भी अच्छा रिस्पांस मिलने लगा, क्योंकि भंगार भी बहुत पड़ा हुआ है। हमारे देश में हमें सबको इंटीग्रेटेड अप्रोच में सोचना होगा। हमारे देश में एल्यूमिनियम इंपोर्ट होता है, कॉपर इंपोर्ट होता है, प्लास्टिक, रबर और स्टील और एल्यूमिनियम और कॉपर, इसका रिसाइकलिंग करेंगे तो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट के कॉस्ट 30% कम हो जाएगी। और 30% कम होगी तो ऑलरेडी हमारे 2 व्हीलर्स जो है
ये सब इनका 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट है। अभी बजाज, टीवीएस, हीरो होंडा, ये मेन टू व्हीलर जो है इस पर 50% एक्सपोर्ट है। ये रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है। अगर हमें भारत को आर्थिक महाशक्ति बनानी है तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का है। 4.5 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को जॉब देने वाली इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री है जो जीएसटी के रूप में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भारत सरकार को और राज्य सरकार को देने वाली है, और यही इंडस्ट्री है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाली है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सब बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इसका फ्यूचर ब्राइट है। केवल आवश्यकता है कि हम सबको अपने अपने विषय तक सोचते रहेंगे तो उसके सही सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे। हमें ओवरऑल कंप्लीट सिचुएशन का विचार करके फिर इंटीग्रेटेड अप्रोच में सोचना होगा। आज पहली बात तो ऐसी है कि निश्चित रूप से प्रदूषण हमारी समस्या है, और इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इसमें इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट अगर बिगड़ जाती है तो क्या होता है, दिल्ली वाले उसका अनुभव कर रहे हैं कि स्वास्थ्य की कितनी तकलीफें हो रही है। तो नॉलेज टू वेल्थ एंड वेस्ट टू वेल्थ, ये दोनों का भी उपयोग करके हमको आगे जाना होगा, और ये उसके ऊपर संभव होगा कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा निकल जाएगा। अभी आप इथेनॉल की बात कर रहे हैं, हम शुगर केन जूस से इथेनॉल बनाते हैं, मोलाइसिस से इथेनॉल बनाते हैं, ब्रोकन राइस से, मक्के से, बाम्बू से, परली से, सबसे इथेनॉल बनना होगा, संभव हुआ है। पर इथेनॉल बनाने के बाद जो स्पेंट वॉश निकलता है, वो स्पेंट वॉश 50% स्पेंट वॉश और 50% बगास डालकर हम बॉयलर में जलाने में भी कामयाब हुए हैं। और ये स्पेंट वॉश से जो पोटैश निकलता है, आज हमारी केमिकल फर्टिलाइज़र की स्थिति ऐसी है कि यूरिया, फास्फोरस, पोटैश सब हम लोग इंपोर्ट में सबसे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, और वो इंपोर्ट करने के बाद देश के 5-7 लाख करोड़ बाहर जाने के बाद, उसके बाद भी केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल पेस्टिसाइड्स के क्या दुष्परिणाम है वो भी हम देखते हैं। तो ये जो पोटैश निकलती है, इसका बहुत बड़ा फायदा है। जो प्रेस मड निकलता है, और इसका अभी जो उल्लेख किया, ये बायोचार, सब जगह ये समस्या है। और मैं अनुभव के साथ बता रहा हूँ कि मेरे यहाँ गन्ना, शुगर केन 35 से 40 टन पर एकड़ होता था, यानी 350 क्विंटल। और मैंने फिर जब ज़मीन की टेस्टिंग की तो मेरे यहाँ जो ऑर्गेनिक कार्बन था वो 0.35% था। तो अभी हमने स्पेंट वॉश और प्रेस मड डालकर एक खाद बनाया। अभी मैं हर साल 50,000 टन खाद बनाता हूँ 4 चीनी मिल में, और मुझे तो सबसे ज़्यादा तो यही सबसे फायदे का विषय है। अब मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ, और अभी मेरे यहाँ 88 टन गन्ना पर एकड़ हुआ, यानी 880 क्विंटल, और अभी तुअर हुई 15 क्विंटल, चना हुआ 15 क्विंटल, और सब्जियों में 3। और मैं ये धंधा करके नहीं करता, मैं किसानों में काम करता हूँ, एग्रीकल्चर फ्रूट में 3 दुकानें खोली है, और अभी मैं सब सब्जियां बेचता हूँ। इतना अच्छा मार्केट मिला है, और ये केवल उसमें भू सुरक्षा का रोल है। जो हमारा खाद है उसका नाम है भू सुरक्षा। तो अभी हम लोग ये बालों से अमीनो एसिड बनाते हैं, तो मैं करीब 6 करोड़ का अमीनो एसिड बनाता हूँ। 4-4 ट्रक बाल खरीदता हूँ, मुझे लगा कि मार्केट में मिलेंगे, अब तिरुपति से लेता हूँ, ऑप्शन होता है वहाँ। और वो अमीनो एसिड प्लांट बूस्टर करके इतना अच्छा है, क्योंकि हम इस पर काम कर रहे हैं कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का उपयोग कम करना। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो बायो सीएनजी तैयार कर रहे हैं, इनका जो मैनुअल बन रहा है ऑर्गेनिक, और ये विशेष रूप से ये ऑर्गेनिक कार्बन के लिए बायोचार बन रहा है, ये इतना इफेक्टिव है कि इसमें आपसे संबंधित नहीं है, पर मैं जबकि किसान हूँ इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि भी हम 1000 किसान ये एआई लगाया उन्होंने, उसमें से 400 लोगों का लग गया,
भाई आज हमारा वर्कशॉप चल रहा है। और एआई में हमें बारामती विज्ञान केंद्र ने मदद की। उसमें 1 एकड़ में 180 टन गन्ना हुआ। मनोज कुमार जी यह सब आप देखने के लिए जाइए, ये यूपी का भविष्य बदल जाएगा। और ये इसका पहला परिणाम ये हुआ है कि अभी मेरे खेत में लगा हुआ है, तो मेरे यहाँ एक मॉइस्चर गिरने का एक मशीन लगा हुआ है और एक वेदर स्टेशन है, और एसओपी बनाई है। गन्ने की एसओपी बन गई, तुअर की बन गई और ऑरेंज की बनाई, क्योंकि हमारे एरिया में 3 क्रॉप इम्पोर्टेंट है। और उसमें उन्होंने ये किया कि मुझे मेरे खेत में अभी माइक्रोसॉफ्ट और गूगल मेरे खेत के फोटो निकालकर एसओपी के कारण मुझे भेजता है कि 8 दिन में आपके यहाँ ये डिसीज आने वाला है, आपको इतना पानी अभी तुरंत देना चाहिए, ड्रिप चालू करिए। तो नेचुरली मेरा 50% फर्टिलाइज़र का खर्चा भी कम होता है, 50% पानी भी कम लगता है और प्रोडक्टिविटी और 50% बढ़ती है। तो आप गन्ने का उत्पादन जब आपका यूपी में अभी बढ़ा, क्योंकि जब उन्होंने बीज बदल दिए, मुझे याद है कि बहुत पहले जब मैं अध्यक्ष था तब मैंने वहाँ के लखनऊ के इंस्टीट्यूट में गया था, मैंने उनको वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट भेजा था। और वहाँ के बाद आपका जो शुगर का ये जो परसेंटेज था वो 9.5 था, अब 11.5 पर आया। ये बढ़ने का कारण ये हुआ कि उनने जात बदल दी। अब ये इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। और अभी नैनो यूरिया और नैनो फर्टिलाइज़र आए, नैनो डीएपी भी आया। अब उसके कारण ये हुआ कि पहले तो 1 फीट तक जब क्रॉप आता है तो हमको तो केमिकल फर्टिलाइज़र हो देने सब गन्ने में तो पर नहीं है, पर उसके बाद मैंने नैनो यूरिया और नैनो मिश्र खाद यूज़ किया, डीएपी भी यूज़ किया, उसके रिजल्ट बहुत अच्छा है। उसमें जो गवर्नमेंट ने सर्टिफाइड किया उसी कंपनी का अब खरीदी करी है। तो आज नेचुरली प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो एग्रीकल्चर की बात जब आप करते ये कि भाई इलेक्ट्रिक की इतनी इफिशिएंट, ये सब ये सही है मुद्दे, पर देश का क्या होगा? तो ये जो अर्बन पॉपुलेशन जो दिल्ली में बैठी है और आपके साहब लोग जो है, इनका एक बहुत बड़ी चिंता है कि प्याज की कीमत बढ़ेगी तो प्याज का एक्सपोर्ट बंद करो। शुगर का तो आपने ऐसा बनाया कि मैं हमारे यहाँ कहता हूँ, जो पिछले जन्म में पाप करता है वो एक तो अखबार शुरू करता है, नहीं तो शुगर फैक्ट्री शुरू करता है। अब आप चीफ सेक्रेटरी थे, आप 4 साल से आपके पहले जो भी सरकार आई, मायावती की थी, मुलायम सिंह जी की थी, हर साल रेट बढ़ाते हैं। अब गन्ने का रेट इन्होंने इतना बढ़ाया कि ब्राज़ील में शुगर की कॉस्ट 26 रुपये किलो आती है और हिंदुस्तान में 33-34 रुपये किलो आ रही है, और हर साल रेट बढ़ा रहे हैं। और हम लोग कंज्यूमर को शुगर सस्ती मिलनी चाहिए करके हमने बैन कर दिया, हमने दिया, इसके हमने बढ़ाते हैं। तो शुगर इंडस्ट्री आप यूपी के, इसलिए मैं आपको, अगर इथेनॉल नहीं आता सर आप लोग सो नहीं सकते थे, क्योंकि 189 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहां शुगर केन मेन क्रॉप है, क्योंकि वो क्रॉप इसलिए कि लोगों में सबसे सिक्योर्ड क्रॉप है और उसके ऊपर इकोनॉमी है पूरी यूपी की। तो 100% अगर शुगर मिल डिस्टर्ब हो, बंद पड़ी काफ़ी, और ऐसे ही चलता रहेगा तो शुगर मिल चल नहीं पाएगी। क्योंकि इसका कारण ऐसा कौन सा धंधा है कि जिसमें 100 रुपये का रॉ मटेरियल खरीदी करो और 99 रुपीज़ में फिनिश प्रोडक्ट बेचो? कोई तो भी चल सकता है क्या धंधा? मैं कोई शुगर मिल के फेवर में बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने सोशल थिंकिंग से मेरे क्षेत्र में मुझे दुर्बुद्धि हुई और मैं कोई मालिक नहीं हूँ, शेयर होल्डिंग्स किसानों का है, 4 शुगर मिल चलाता हूँ। अब मैं बंद करना चाहता हूँ, भंगार में बेचना भी चाहता हूँ, पर कम से कम 4 लोकसभा और 20 एमएलए चुनाव हार जाएंगे और 4 सब बीजेपी के ही है। तो मैं अब मेरे सामने प्रॉब्लम है कि चुनाव हारूं तो क्या करूं, या लॉस सहन करूं। मैं लॉस सहन कर रहा हूं और बाकी चीज़ों में कहीं ना कहीं निकाल के बैंक के पैसे चुका रहा हूं। तो प्रॉब्लम यह है कि एग्रीकल्चर की हालत जो है वो आज क्या स्थिति है। ये फूड वर्सेस फ्यूल, ये हमारे यहाँ केड़कर साहब थे, बहुत अच्छे अधिकारी थे, विद्वान थे, उनने किताब लिखी और उसमें पहली बार उन्होंने अटल जी सरकार के समय फूड वर्सेस फ्यूल की बात की थी। उनकी अपनी बात है,
आज स्थिति क्या है? गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं, टमाटर संतरा सस्ता है, जूस महंगा है। आप सोयाबीन का तो पूरा हालत कर एमएसपी के नीचे गए, सब जगह पर एमएसपी के नीचे गए। अब आज इस साल हम चावल में वर्ल्ड में पहले नंबर पर पहुंचे हैं। यानी हमारा प्रॉब्लम एक समय ऐसा था कि शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन, ये हमारी देश की समस्या थी। आज हमारे देश की समस्या है सरप्लस ऑफ फूड ग्रेन। यानी पंजाब और हरियाणा में चावल रखने के लिए जगह नहीं थी, तो हमने रेलवे प्लेटफॉर्म का उपयोग किया। आज हमारे गोडाउन भरे हुए हैं और एमएसपी से नीचे जाकर सरकार खरीदी कर रही है। अब सरकार एमएसपी के नीचे जाकर जो खरीदी करती है उसके लिए कितना पैसा खर्चा कर सकती है मुझे बता नहीं पाता, बताना उचित नहीं है। मैं मंत्री हूँ, मीडिया वाले कल मेरे नाम से लिखेंगे। तो आज प्रॉब्लम यह है कि एग्रीकल्चर में हमारे जीडीपी ग्रोथ में 50-54% contributes from service sector, 20-24% from manufacturing sector, and 14% only from agriculture and allied sector. पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पर वो 50 से 60% है, और इसलिए इम्बैलेंस हुआ है। ये दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, लखनऊ शहरों में लोग की पॉपुलेशन इसलिए बढ़ रही है क्योंकि एग्रीकल्चर वायबल नहीं है। गांव में जाने के लिए अच्छे रोड बनाने पड़ेंगे, नहीं है। अटल जी थे तब मुझे जिम्मेदारी दी थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने का सौभाग्य मिला, मेरे अध्यक्षता में कमेटी थी। तो एक यहाँ नीति आयोग में एक सज्जन थे, जब मैं रिपोर्ट लेके अटल बिहारी जी के पास जाता था तो वो बोलते थे कि नो सर, प्राइम मिनिस्टर, दिस इज ए स्टेट सब्जेक्ट, यू कैनॉट मेक एनी एक्सपेंडिचर ऑन स्टेट सब्जेक्ट। 4-5 मीटिंगें हुई। एक दिन अटल जी अधिकार से मेरे ऊपर नाराज हुए, ये कितने बार मीटिंगें चल रही, क्या कर रहे हो तुम, होता क्यों नहीं है? तो मैं बड़ा हंसते मैंने उनको कहा, इसका जवाब मैं कैसे दूंगा, देश का प्रधानमंत्री देगा, आप बताओ क्यों नहीं हो रहा। तो बोले क्या कारण है? तो पटवा जी थे उस समय ग्रामीण में, तो उन्होंने कहा ये ऊंट बैठा हुआ है, पूछा अधिकारी का नाम नहीं लेता, बोले ये ऊंट आड़ा पड़ता है। तो अटल जी बोले क्या बात कर रहा है? बोले वो हर बार, बोला अटल जी ये साहब लोगों की सुनते रहोगे तो अगली बार अपनी सरकार नहीं आती। ये बताने कानून क्या होता है, कैबिनेट इज सुप्रीम। मैं अपने अधिकारी को कभी भी कहता हूँ, तुमको जो लिखना है लिखो फाइल पर। सरकार, मैं मंत्री हूँ 5 साल के लिए, मेरे दिमाग से चलेगा, तुम्हारे विजन से नहीं चलेगा। तुम्हारा तब तक लिखने का अधिकार है, तुम लिखो इसके दुष्परिणाम 1, 2, 3, 4, 5 और फिर नीचे लिखो फॉर कंसिडरेशन, और आपका रिमार्क दो, मैं जिम्मेदार हूँ। आज गाड़ी को, बस को आग लग गई तो लोग मुझे सवाल पूछते हैं, कोई अंडर ऑफिसर, डेस्क ऑफिसर, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी का फोटो नहीं छपता। आजकल मैंने कहा है NHI में, तुम्हारे फोटो छपवा ना रोड पर, गड्ढा दिखा दो। मैंने बोला ऐसा तैयार करो कि इनके कौन कौन थे जो खराब रास्ते बने, इनके फोटो आए छप के पेपर में, मेरा क्यों आएगा? अकेला मेरा भी आए, मैं भी जिम्मेदार, तुम्हारा भी आए। तो प्रॉब्लम यह हुआ है कि एग्रीकल्चर में हालत जो है उसमें बेरोजगारी बढ़ रही है, गांव गरीब मजदूर किसान की हालत ठीक नहीं है। इसलिए पहली बात यह कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। पावर का अब कुछ मतलब नहीं रहा। जिन्होंने पावर बनाई, जो ग्रीन पावर थी, जो 6 रुपये 6.5 रुपये रेट था, क्योंकि उसके सिवा पूर्ति नहीं। अब वो सोलर पावर 2 रुपये 60 पैसे आई, तो नेचुरली अब एनर्जी है। और दूसरी बात यह है कि ये अभी जो बहुत चर्चा हो रही है कैफे लॉम, अभी 15 दिन में फाइल आएगी मेरे पास। अब मैं बताना नहीं चाहता क्या होगा, पर वो अभी उसके लिए भी बड़े विवाद रहे। ये कोई हमें हम राजनीति के एक्सपोज होते क्योंकि हम 100% ओपन है, और इंडस्ट्रियलिस्ट इसलिए ओपन नहीं होती क्योंकि वो चुपचाप अंधेरे में उनका काम चलता है। क्या गुलाटी जी बराबर है ना? अब हाथ जोड़ तो ये सब जगह पर देखो, हमाम में सब नहीं है, तो ये सब चलने वाला ही है। अब प्रॉब्लम यह है कि 60% चलते चलते बिजली तैयार करता है, फ्लेक्स इंजन है, और इसलिए आने वाले समय में
पहली बात तो मैं अक्सर अतुल मुड़ी जी को एक बात कहता हूँ कि ग्रीन फ्यूल में ये देश अच्छा है, पर्यावरण अच्छा होना चाहिए, तुमने शुद्ध हवा होनी चाहिए, ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए, केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं करना चाहिए, और फिर ये अगर ग्रीन फ्यूल यूज़ होगा तो प्रदूषण नहीं होगा। ये सब बातें जो है ये रिसर्च स्कॉलर, एजुकेटेड स्कॉलर को लिए होती है। मैं राजनीति में हूँ और मुझे 17 डिलीट्स मिले, डॉक्टरेट, पर मैं मेरे लोकसभा में चुनकर आया हूँ। ये डॉक्टरेट, प्रोफेसर, वकील इनके कारण नहीं आया। मैं हर बार चुन के आता हूँ। जो मेरी स्ट्रेंथ है, जितने अलग अलग प्रकार के लोग जो समाज में हैं, जिनके मैं नाम नहीं लेता हूँ, 90% मुझे वोट करते हैं। रेड लाइट एरिया में मुझे इस बार 98% वोट मिला। तो ये लोग, क्योंकि सबका एक अधिकार है। और दूसरा, जो विद्वान आदमी होता है वो बोलता है आज धूप है, मैं अभी 1 घंटे में वोटिंग को आता हूँ, फिर 2 घंटे में आता हूँ, आखिर 5 बज जाते हैं, आते ही नहीं, और ये झुंबड़ से जाके वोटिंग करते हैं। मुझे एक बार, मैं हवाई जहाज में बैठा था, हम लोग चुनाव हारे थे, एक बहुत बड़े व्यक्ति मिले, बहुत बुरा हुआ, आप लोगों का बहुत अच्छा विचारधारा ये है। मैं बोला वो छोड़ो, तुम्हारा हाथ दिखाओ पहले। तो हाथ पर वोटिंग नहीं था। मैंने बोला यार मेरे ज्ञान मत सिखाओ, तुम जो वोट नहीं करता उसने राजनीति में बात नहीं करनी चाहिए। आप मेरे बारे में सहानुभूति मत दिखाओ, तुम किसी को भी वोट दो, पर दिखाओ तो वोट किया कि नहीं किया। तो प्रॉब्लम ये है कि एग्रीकल्चर में, ये चीफ सेक्रेटरी साहब थे पहले, इनको पूछो, 1,35,000 40,000 करोड़ रुपए शुगर मिलने गन्ने वाले के दिए नहीं थे। आज ये गन्ने वाले को पैसे थोड़े बहुत मिल पाए, इसका कारण अगर कोई होगा तो ये इथेनॉल है। और जब ये आया कि मक्के से इथेनॉल, तब फिर बात आई। मुझे याद है कैबिनेट में बड़ा हॉट डिस्कशन हुआ, फूड वर्सेस फ्यूल। फिर मैंने कहा कि मक्के की एमएसपी 1800 रुपये, 1800 या 1850 है, और मार्केट प्राइस 1200 रुपये। और मैंने कहा ये आप 600 रुपये दे के हम खरीद रहे हैं, अगर ये इथेनॉल बनेगा तो मक्के की प्राइस बढ़ेगी। और जैसा हमने निर्णय किया, 2800 रुपये तक भाव गए, 2600 रुपये बिहार और यूपी में मक्के का भाव बढ़ा, और केवल 42,000 करोड़ रुपए यूपी और बिहार के किसानों के जेब में इसलिए गए कि मक्के से इथेनॉल बनना शुरू हुआ, और आज मक्के का क्षेत्र बढ़ा। अभी आपको मनोहर लाल जी ने समस्या दी हरियाणा में, खूब चावल, तो चावल न लगाने के लिए इंसेंटिव दिया सरकार ने। हरियाणा सरकार ने 7,000 रुपये एकड़ या हेक्टर इसलिए दिए कि चावल मत लगाओ। तो आज की स्थिति में सरप्लस ऑफ फूड का कन्वर्शन एनर्जी में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास सरप्लस है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें एग्रीकल्चर, देश का पूरा इंटीग्रेटेड अप्रोच में सोचना होगा। और ये जो फ्लेक्स इंजन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 60% बिजली आती है, इलेक्ट्रिक भी रहे, फ्लेक्स भी रहे। और आप लोग और एक बात करिए, मैं विशेष रूप से आपको ये सुझाऊंगा कि ये जो आईएफ जी को, कि आप इसको एक 5-7 कमेटी बनाइए। पहला सेक्टर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, दूसरा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। केवल टेलीकम्युनिकेशन के टावर 450 करोड़ लीटर डीजल यूज करते हैं। अभी मैंने किर्लोस्कर के पीछे लग लग के एक जनरेटर सेट बनाए 2, और अब भी पहले बार लगे कि इथेनॉल पर। अब इथेनॉल का रेट 65 आएगा, 70 रुपीज़ आएगा, और डीजल का 110 115 आएगा। इकोनॉमिक्स है। अतुल, एक बात याद रखो, ये देश पैसा बचता है उसके पीछे दौड़ता है। ये गुलाटी साहब को देखो, कौन सा मॉडल बनाना, क्वालिटी बराबर कौन सा चलेगा, किसमें प्रॉफिट। गुनाह नहीं है सर, धंधे वाले ने प्रॉफिट के बारे में ही सोचना चाहिए। धंधा धंधा जैसा करना चाहिए, सेवा सेवा जैसी करनी चाहिए, और राजनीति राजनीति जैसे करनी चाहिए। मतलब मुझे आक्षेप नहीं है। तो इसलिए आपको जो प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, आपको हर बार देश के प्राइसेस और इंटरनेशनल प्राइस के साथ ग्रीन सॉल्यूशन सस्ता देना होगा, तब चलेगा।
और नहीं चलेगा तो ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। और इसलिए एक बार आज तक ये है कि आज जो इंटरनेशनल क्रूड की प्राइस है उसके तुलना में एविएशन को छोड़कर, जिसमें अभी रिसर्च चल रहा है, हमारा सब जो है वो इकोनॉमिकली वायबल है। कल मुझे ये आयशर कंपनी का, मैं पीछे पड़ा हूँ ट्रैक्टर के लिए, तो उनने खूब पीछे पड़ा तो उनने ट्रैक्टर लाया। तो पहला ट्रैक्टर है डीजल और सीएनजी पर। अगर मैं सीएनजी पर ट्रैक्टर चलाता हूँ तो 1 लाख रुपए बचत है किसानों की, और सीएनजी और इथेनॉल पर फ्लेक्स आता है तो 1,30,000 रुपये मिनिमम बचत है। अब एक किसान के लिए 1,30,000 रुपये की बचत बहुत बड़ी है। अगर वो फर्टिलाइज़र में बचाता है, डीजल में बचाता है, इंसेक्टिसाइड्स में बचाता है और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है तो उसके प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बढ़ेगी। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि ये इथेनॉल, ये फ्यूल, ये पोल्यूशन तो निश्चित रूप से नहीं है, किसानों को फ़ायदा है, पर ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। और इसलिए अभी बजाज में मैंने 2 व्हीलर की सीएनजी लॉन्च की थी। तो राजीव बजाज ने मुझे कहा कि ये, मैंने बोला ये कैसे चलेगी, उन्होंने इथेनॉल की भी बनाई है। तो उन्होंने कहा कि ये ₹2.40 पर किलोमीटर पेट्रोल बाइक का अगर खर्चा, तो ये सीएनजी बाइक का खर्चा ₹1 है। तो नेचुरली साउथ में काफ़ी चलने लगी। अब तो एलपीजी के भी वहाँ स्कूटर्स आई है। और ये 2 व्हीलर में तो ऐसा हुआ है कि मैं अभी अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल वालों को इनकरेज करता हूँ। कल मैंने और एक बंगलोर में एक स्कूटर के शोरूम का उद्घाटन किया, इतनी बढ़िया क्वालिटी की बनाई। अच्छा, वो भी होशियार है कि टीवीएस बजाज वालों में बैटरी है 125 किलोमीटर के लिए चार्जिंग है। अब उन्होंने स्टडी किया कि एक स्कूटर 24 से 26 किलोमीटर चलती है। टीवीएस ने भी किया था और बजाज ने किया था। तो मैंने इनको कहा, चिल्लर लोगों को, तुम एक काम करो, तुमको अगर अच्छा है तुम बोले 60 किलोमीटर की बैटरी लाओ, तो तुम्हारा बैटरी का खर्चा कम होगा, स्कूटर सस्ती बेचो तो मार्केट में तुम ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनोगे। तो अब नेचुरली लोग बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च कर रहे हैं और इसका फ़ायदा भी हो रहा है। आज सबसे पहली बात कि इथेनॉल का जो कंजम्पशन है 20% तक सरकार ने किया है और प्राइवेट प्लेयर को भी मैंडेटरी किया है। तो मुझे लगता है कि जो थोड़ी सी तकरार थी, अभी थी, प्रॉब्लम था, वो काफ़ी इस साल निकल जाएगा। पर आप इथेनॉल का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हो? आप एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, आप क्या कर रहे हो? नहीं, मैं बात करूंगा बाद में आपसे। आपको पहली बात मेरा कहना इतना है कि अभी ये जो कैफे नाम आने के बाद ये सबके 2 व्हीलर तैयार है 100% इथेनॉल पर। और शुगर फैक्ट्री को मैंने कहा कि तुम इनकी एजेंसी ले लो और तुम ही तुम्हारा इथेनॉल कंज्यूम करना शुरू करो। अभी एक दिल्ली आईआईटी में इथेनॉल में 7% पानी डालकर उन्होंने स्टोव बनाया। अब उसका इकोनॉमिक्स, जब मैंने बोला पहले इकोनॉमिक्स बताओ, तो कमर्शियल गैस का रेट जो है, सब्सिडी वाला अलग है और कमर्शियल अलग है। तो ये इथेनॉल वाला जो गैस स्टोव है वो कमर्शियल गैस की तुलना में सस्ता है। तो वो अगर बड़े बड़े स्टोव बना कर अगर इथेनॉल देते वो सिलेंडर में हम लोग, तो इथेनॉल उसमें यूज़ होगा। फिर 450 करोड़ ये जो टावर है जो डीजल फूक रहे हैं उसमें यूज़ होगा। मैंने खुद स्कैनिया की 15 बसेस हमारे शहर में पायलट प्रोजेक्ट करके 100% इथेनॉल पर चली, एक भी बार बननी पड़ी, नो पोल्यूशन। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें अभी ट्रैक्टर आ जाएगा फ्लेक्स इंजन का, तो इथेनॉल जाएगा। तो आप सरकार के ऊपर डिपेंड होने के बजाय अगर खुद उसके मार्केट में, और सरकार से वो परमिशन आप सबको मिले, इसके लिए मैंने बात भी की है और निश्चित रूप से होगा। अब बात इन्होंने आइसोब्यूटेनॉल की। अब आइसोब्यूटेनॉल की टेस्टिंग चल रही है, पर अगर जैसे अतुल कह रहे हैं कि 10% तक आइसोब्यूटेनॉल डीजल में डाल दिया जाएगा, तो पेट्रोल की तुलना में डीजल का और 6 गुना, और उसमें 10% गया तो बहुत बड़ी इथेनॉल की डिमांड है अपने इसमें निकल सकती है। तो 100% इथेनॉल, नहीं तो फिर आइसोब्यूटेनॉल, और आइसोब्यूटेनॉल के भी इंजन तैयार होंगे। मैंने अतुल को बुलाकर ट्रैक्टर कंपनी वालों के साथ उनकी बात करा दी। मैं जब ब्राज़ील में था तो जॉन डियर ने 100% इथेनॉल का ट्रैक्टर लॉन्च किया, मैं देखा हुआ। तो धीरे धीरे ये संभव है और ये होने में इकोनॉमिक्स भी है, बचत भी है।
तो हमें हर क्षेत्र में भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है। अभी ये मनोज जी बता रहे थे कि हमने हाईवे बना रहे हैं। एक हाईवे के पीछे हमने कितने करोड़ का डीजल यूज किया। अगर 1000 करोड़ का अगर होगा तो 60-70 करोड़ का डीजल जाता है। तो ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाले अभी हाइड्रोजन पर, इथेनॉल पर या इलेक्ट्रिक पर, अल्टरनेटिव बायोफ्यूल पर आते हैं, तो हमारा इंपोर्ट बचेगा। तो जहाँ जहाँ इसका उपयोग हो सकता है उसका सॉल्यूशन हमको निकालना पड़ेगा। और ये करने में मुझे लगता है कि अलग अलग इसमें एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, टेलीकम्युनिकेशन के टावर, वहाँ जनरेटर्स हैं, और फिर आगे चल के हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं क्या, इसका भी विचार करना होगा। मुझे याद है कि अभी हम लोग नुमालीगढ़ में बाम्बू से इथेनॉल बना रहे हैं, तो हमारी वहाँ से एक पाइपलाइन बांग्लादेश में गई है। तो जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को जब मैं मिला था, शेख हसीना जी थी, तब बात हो रही थी, तो मैंने उनको एक सुझाव दिया, क्योंकि मैंने उनके लिए, मैं शिपिंग मंत्री था, तो ब्रह्मपुत्रा में 250 किलोमीटर बांग्लादेश में घुसकर मैंने ड्रेजिंग करके उनको मुंगली पोर्ट तक वाटरवेज बना के दिया था। ये बंडोपाध्याय जी को पता है, हमारी डिपार्टमेंट में थे उस समय। तो वो सुषमा जी ने मुझे कहा कि ये हो सकता है क्या? तो मैंने कहा कानूनी कैसे हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश में जाकर मैं कैसे पैसा खर्चा करूं, पर आप बोलती है तो कुछ भी हो सकता है, हम राजे हैं, हमको आग लगाने का भी अधिकार है अगर करने का। बोली तो बोला आप बोलोगे, तो बोला हमारा मित्र देश है, ये तुम कर सकते तो करो। मेरा ठीक है, तो बांग्लादेश में बनाया। तब मैंने उनको कहा कि नुमालीगढ़ से जो पेट्रोल डीजल आप बांग्लादेश में आ रहा है, उसको अगर आप ये इथेनॉल पेट्रोल में डाल देंगे तो आपका पेट्रोल 2 रुपये सस्ता हो जाएगा। अब नेचुरली श्रीलंका में भी यही स्थिति है। तो श्रीलंका से, भूटान से, बाद में बांग्लादेश, म्यांमार, यहाँ जहाँ जहाँ हम लोग पहुँच सकते हैं, तो आगे मार्केट भी ढूंढना पड़ेगा कि हम एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। ये जो अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट के साथ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ऑटोमोबाइल इंजन, और ये जो विशेष रूप से कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर में जो इंजन्स है और मरीन इंजन्स, इसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। अब क्या हुआ है कि सरकार के तरफ से अभी जैसे से आता है कि हाइड्रोजन की बात हुई, अब हाइड्रोजन में एक प्रश्न जो है अनुत्तरित है। अभी हमने 600 करोड़ का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। प्रोजेक्ट में टाटा है, रिलायंस है, IOCL है, 10 रूट भी है हमारे, और मैंने टाटा के 3 ट्रक, 2 हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर, नहीं 2, एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर और एक IC इंजन पर मैंने उसको लॉन्च भी किया। पर ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन, ये समस्या है। ये कितनी गंभीर समस्या है, इसका कारण मैंने जब गुलाटी साहब ने मुझे हाइड्रोजन की कार दी, तो ये भी एक जोक है। ये मेरे घर में कार भर के आती, मैं क्यों नहीं वापरता ज़्यादा, क्योंकि वहाँ हाइड्रोजन भर के फिर वो ट्रक में लाते मेरे घर पे क्योंकि हाइड्रोजन खर्चा होता है, क्योंकि हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन वहाँ है। वो भी आया, वो अमेरिका से आया, और राम कुमार जी थे, वो आते आते वो कोई कस्टम वाला अटका देता था, कोई इधर अटकाता था, फिर मैं पीछे पड़ता था, तो 1 साल तो स्टेशन आने के लिए लगा। अब उसकी कीमत अगर स्टेशन डालेंगे तो 6 करोड़ रुपए है। अब डीजल की कमाई है 2 रुपये लीटर, पेट्रोल के 2 रुपये और डीजल के 1.5 रुपये लीटर। एक पेट्रोल पंप वाला धंधा, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, गलती से नहीं डालना चाहिए, वाइबिलिटी नहीं है। वो अगर 6 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगा और 1000 किलो रोज अगर हाइड्रोजन बेचेगा, तो उसको 10 रुपये किलो मिला, तो ब्याज के लिए भी महंगा है। तो हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन कोई क्यों डालेगा, वो घाटे में जाएगा। तो हमें इसके पहले हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन को मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया करना पड़ेगा, इसकी कॉस्ट कम करनी होगी। दूसरी बात जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन, ये भी एक समस्या है। और तीसरी बात जो है, मैं तो, आप अभी $3 बात कर रहे थे, मेरा पहला कहना है कि हाइड्रोजन की कीमत $1 होगी, तब हिंदुस्तान ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं तो निर्यात करने वाला देश बनेगा। और इसका सबसे अच्छा रॉ मटेरियल कोई है तो म्यूनिसिपल वेस्ट है। सर, अभी मेरे कारपोरेशन में एक नीदरलैंड की कंपनी को
हम 10 साल से टॉयलेट का पानी बेचते हैं, तो पहला प्रयोग हमारा यशस्वी हुआ, 350 करोड़ हमको मिलते हैं। पहली कारपोरेशन है कि उसका, अभी मैंने मथुरा में हाइब्रिड एन्युटी में भी प्रोजेक्ट किया जो इंडियन ऑयल पानी लेती है 19 ml स्लज का। तो अभी हमने वहाँ कचरे से किया, कचरे को सेग्रीगेट किया, ग्लास, मेटल और प्लास्टिक रिसाइकल होता है, और उसमें से ऑर्गेनिक वेस्ट बायोडाइजेस्टर में डालकर मीथेन निकालकर, मीथेन से हम बायो सीएनजी भी निकाल सकते हैं और मीथेन से हम लोग हाइड्रोजन भी तैयार कर सकते हैं। तो म्यूनिसिपल वेस्ट ये फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल हो सकती है। और अभी हमारे यहाँ 28 टन पर डे सीएनजी बनने वाला प्लांट एक 10 दिन में इसका इनॉग्रेशन है। तो हर कारपोरेशन में कचरा है। दिल्ली में तो पर्यटन के 4 बड़े बड़े टेकड़ियाँ। अब ये जब मैं पहली बार दिल्ली मेरठ हाईवे बना रहा था, आप थे तब, तो मैं वो नगर विकास और ये और कारपोरेशन की मीटिंगें करते करते एक दिन मैंने कहा भैया कचरा भी नहीं उठाना और काम भी नहीं करना, चलो हटाओ, आप आओ मत मेरे पास, मुझे समय नहीं खराब करना। मुश्किल से अभी हुआ। तो गाजीपुर टेकड़ी की हाइट 7 मीटर कम हुई और हमने पूरा कचरा दिल्ली मुंबई हाईवे में, और 80 लाख टन कचरा अभी तक देश में हमने रोड में डाला है, और डोलारो अहमदाबाद पे डाला है। अभी मैं हर महानगर पालिका को कहता हूँ कि कचरा NHAI को दो, और 2027 एंड तक देश की लीगेसी वेस्ट को पूरा समाप्त करने का एक प्रोग्राम हमने तय किया है, जो स्वच्छ भारत का अभियान है। तो कचरे को हाइड्रोजन में कन्वर्ट करना आसान है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, जो आज आपने ये बायो बिटुमिन, जिसके लिए बायोचार, इसमें ये भी एक प्रॉब्लम है सर। मैं तो कभी कभी ऐसा कहता हूँ कि हम तो लोग पॉलिटिशियन हैं, हमको जनता चुन के देती है, पर आप जैसे आयस थोड़ी है सर। जो कुछ कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं, आप जैसे कोई लोग नहीं है, क्योंकि बाकी तो हमको समझते नहीं। तो नेचुरली कन्विंस करते करते आदमी थक जाता है। अब ये बहल मैडम और ये सब कर रहे कोशिश, आप इन्होंने पहले रिसर्च किया, तो मैंने इनको कहा कि आप एक काम करो, रिसर्च करके, तो ऐसे बहुत से रिसर्च सरकार के सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में जाते थे, मतलब आप इसको बेचो। तो इन्होंने 15 पेटेंट मेरे हाथ से पहले लोगों ने खरीदी की, अब 23 हो गए। अब प्रॉब्लम यह है कि ये होने के बाद अभी ये जो बिटुमिन के भाव 40% बढ़ गए ये लड़ाई के कारण। और बीच में मैंने भूपेंद्र जी को कहा था कि ये जो यूज टायर है इसको बंदी है देश में इंपोर्ट करने की। मैंने बोला इसको अनुमति दो, क्योंकि सर्कुलेशन इकोनॉमी को डेवलप करने से देश में रोजगार निर्माण होंगे, फायदा होगा। अब उसको यूज़ करके रबर पाउडर, उसकी मेरे अंदाज से, आई डोंट नो, और टेक्निकली फिट करना पड़ेगा इनको, कि 17% यूज रबर टायर की पाउडर, 30% बायोचार और 7% प्लास्टिक, और ये सब रिफाइनरी में करें, क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्टर बराबर काम नहीं करते। बिटुमिन में बहुत गफले होते हैं, और इसलिए हमने उनको कहा कि आप ये लो, जैसे इथेनॉल पेट्रोलियम कंपनी खरीदती है, और हमको एक जो कौन सी ग्रेड है उसका एक बिटुमिन हमको आप इसका मिक्स करके वो हमको दो। तो ये हम ही लोग ले सकते हैं सर, 40% बिटुमिन लेते हैं। अब देश को 110 लाख टन बिटुमिन लगता है, और हमारे रिफाइनरी की कैपेसिटी 50 लाख टन है, तो 60 लाख टन हम इंपोर्ट करते हैं। अब जैसे अभी हमने निर्णय किया है कि ईरान में मैक्सिमम बिटुमिन उधर से आता था, तो 40% भाव बढ़े, तो हमने अभी सबके रेट बढ़ा दिया। अब ये रेट बढ़ाने के बजाय अगर ये बायोचार आता है, ये जो परली से बनता है, और ये जैसे अभी पानीपत का प्रोजेक्ट है कि 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन ये बायो बिटुमिन, और 78,000 टन पर ईयर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो मुझे लगता है कि ये बिटुमिन के लिए अगर ये आता है तो इतना इंपोर्ट कम होगा। अब इसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच में ये सोचना पड़ेगा कि बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी हाउ वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास। अब बगास से तो पावर बनाना तो वायबल नहीं है, तो बगास से हम लोग अभी बायोडाइजेस्टर में डाल के CNG बना रहे हैं। अब 5 टन ऑफ राइस स्ट्रॉ परली इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो CNG, और 12 टन ऑफ नेपियर ग्रास 1 टन देता है। और इसमें जो राइस स्ट्रॉ में जो है उसकी टेक्नोलॉजी में एक अच्छी बात हुई
एक सच्ची घटना बताता हूँ कि मुकेश अंबानी मुझे मिले और मुझे कहा कि नितिन जी आप मुझे इतने बार कहते थे कि बायोफ्यूल ये करो वो करो, तो बोले मैंने कोई आपकी बात सीरियसली ली नहीं। उन्हें आनंद को बुलाया, तो मैंने बोला आनंद ने क्या किया? बोला अब ये इसकी तो इच्छा 400 प्लांट का इसने काम शुरू किया है और ये 4000 प्लांट डालना चाहता है। तो उन्होंने चालू भी किया अनेक जगह। हाँ, तो वो मुझे, मैंने उसको बोला कि अनंत ये तुमको कैसे? बोले मैं आपके हर भाषण को सुनता हूँ। ये तब से मेरे मन में था। अब ये राइस स्ट्रॉ फुकट में अवेलेबल है क्योंकि जला रहे लोग। अब उसको अगर सीएनजी तैयार होता है तो ट्रैक्टर चलेगा, कितना फायदा होगा। तो जो सॉल्यूशंस है उसको सबको हम स्वीकार करें और ये कंज्यूमर पे छोड़ दो। आपको कोई कंज्यूमर बहुत होशियार है, वो परख के करता है क्या लेना, कौन सी गाड़ी लेना, 4 बार किटकिट करता है वो 4 डीलर के पास जाके। मैं जब साहब स्टूडेंट था, मैंने ये राहुल बजाज जी को एक बार मजाक में बताई थी बात कि मैं स्टूडेंट था तो मैंने बैंक लोन लेके स्कूटर खरीदने के लिए बजाज का चेतक का नंबर लगा था। तो वहाँ 3 कलर थे, तो मैंने बोला कि तीनों कलर अच्छे नहीं, काला नीला पीला था। तो मैंने बोला मुझे ये कलर नहीं, अच्छा कलर चाहिए। तो डीलर ने बताया देखो साहब ये है, लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। मैंने यार ऐसा नहीं, कलर अच्छा नहीं होता बोले। तो मैं बाहर निकलते हुए बोला कि देखो एक दिन ऐसा आएगा कि ये गाड़ियाँ ट्रक में लेके घूमेगा गाँव में बेचने। और मेरी वाणी लग गई सर। अब ऐसा है कि किसी की दादागिरी नहीं चलती। नहीं श्राप नहीं। अभी ये हमको फोन, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री, मेरे जरा टोमेटो को बताओ मेरी इनोवा चाहिए। अभी इनोवा जैसे 4 मिल गए तो इनका मार्केट डाउन होता ना जी। मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का सिद्धांत यही है कि प्रोडक्शन बढ़े, क्वालिटी बढ़े, कंपटीशन और कंज्यूमर बेनिफिट मिलेगा। और इसलिए रोज ये अलर्ट है कि कॉस्ट भी रहे और क्वालिटी भी रहे। तो अब प्रॉब्लम ये है कि कंज्यूमर के ऊपर ये छोड़ दो, पर पेट्रोल डीजल की ज़रूरत नहीं। और कोई भी चीज़ जो है ये ज़बरदस्ती से नहीं होती। और अभी जब एक समय ऐसा था जब पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर मैंने लॉन्च की थी कार ताज पैलेस में, तो मुझे एक बहुत बड़े चैनल के पत्रकार ने एक प्रश्न पूछा था कि ये गाड़ी अगर रास्ते में बंद पड़ेगी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? यहाँ से शुरुआत हुई। अब एक गाड़ी बंद नहीं पड़ी। अब मेरे पास स्टैटिस्टिक है 80% राइज हुआ है। अब मेरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले घूमता था ना, ये आपकी गाड़ी फ्लेक्स इंजन, ये वो, ये ऐसा है वैसा है, सब नेताओं को चक्कर कि भाई ये करो, पेट्रोल डीजल मत लो। तो मुझे कन्विंस करना पड़ता था। अब ज़रूरत नहीं है, आधा काम लड़ाई ने कर दिया अगर आधा काम कंज्यूमर को फायदा मिल रहा है तो अब सब लोग ले रहे हैं। केवल गवर्नमेंट में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी लेंगे तो आपको पता नहीं होगा, पर हमारे यहाँ स्टेट ट्रांसपोर्ट है। तो स्टेट ट्रांसपोर्ट के जो कई भी सब लॉस में है। कोई स्टेट ट्रांसपोर्ट, सिटी बस सर्विस कई प्रॉफिट में नहीं, क्योंकि जो ड्राइवर है, मैंने हमारे नागपुर में 200 बसेस कन्वर्ट की सीएनजी पर। तो ड्राइवर लोगों ने मेरा पुतला जलाया। तो मैंने कहा तुम्हारी नौकरी कायम है ना? तो मैंने बोला प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? सर बोले प्रॉब्लम ये है कि गरीब पे पेट पर तुमने लात मारी। मैंने बोला मैंने क्या किया? बोले ये डीजल की बस है, इसमें फूक के रोज 4 लीटर डीजल निकाल के बेचते थे, हमारा धंधा बंद हो गया, अब हम क्या करेंगे? तो ये डीजल फूक कर निकालने की सुविधा है, पर इलेक्ट्रिक में नहीं है, इथेनॉल पे कीमत नहीं है और सीएनजी में नहीं है। तो पूरे स्टेट की जितनी कॉरपोरेशंस है, एक साउथ की थोड़ी सी, कर्नाटक, तमिलनाडु छोड़कर, ये बंडोपाध्याय थे वहाँ, यहाँ घंटी छोड़कर सब बस में बजता है और वो पूरी लॉस मेकिंग है। तो अब धीरे धीरे जब इलेक्ट्रिक आएगा तो नेचुरल ये लॉस है। हमारे कॉरपोरेशन में 70 करोड़ का फायदा हो गया, क्योंकि डीजल का जैसा था वो बंद हो गया खर्चा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोग स्वीकार करेंगे। और लोगों में कोई आजकल जो देखिए, मैं बहुत बार ये ऑटोमोबाइल वालों को कहता था कि आप कॉस्ट सेंट्रिक मत बनो, क्वालिटी सेंट्रिक बनो, विशेष रूप से इंडिया, नाम नहीं लेता उनके। और मैंने कहा कि तुम क्वालिटी सेंट्रिक बनोगे तो बाहर के ब्रांड नहीं आएंगे। नहीं सुना सर उन्होंने, हमको सस्ता है, कंज्यूमर को सस्ता देना है। अब जब ब्रांड्स आए तब इनका सेल खत्म हो गया।
अब वो मुझे हर इसमें एग्जीबिशन में अपनी गाड़ियाँ दिखाते हैं, अब कैसी मतलब अब अच्छी है। अब वो उनके सेल बढ़ गया और जो बाहर से है उनका कम हो गया, क्योंकि लोग क्वालिटी सेंट्रिक है, लोग कॉस्ट सेंट्रिक नहीं है, और उसमें भी एक रेशो है। तो मुझे लगता है ये कंज्यूमर पर छोड़ देना चाहिए और कंज्यूमर इसका निर्णय करेगा। पर हमें ऑप्शन करते समय फ्यूल के बारे में सब ऑप्शन पे काम करना चाहिए, अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल में। पहली प्रायोरिटी ग्रीन फ्यूल, जितना दम है उतना बना लो। उससे 22 लाख का इंपोर्ट खत्म होने वाला है क्या? नहीं होता। फिर इलेक्ट्रिक होने दो, हाइड्रोजन होने दो, जो ऑप्शन है अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल के सब करो। कंज्यूमर सिलेक्ट करेगा, उसका इकोनॉमिक्स वो देखेगा। और इसलिए अभी इन्होंने भी किया कि विस्तारा एयरलाइंस का हवाई जहाज और एक स्पाइस जेट का देहरादून से आया। तो अजय सिंह मेरे पास आया, वो बोले यार तुम बोलते हो ट्रायल करो, बोला करो ना। बोले मेरा हवाई जहाज का इंजन बिगड़ गया तो क्या होगा? मैं बोला कुछ नहीं होगा, तेरे हाथ तक इतने काम किए, कोई माल पानी लिया नहीं मैंने, एक जहाज मेरे नाम पे जमा कर और कर बढ़ रही है, करना पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सर अच्छा हो गया, वो देहरादून से आया, हमने उसका स्वागत किया, इन्होंने विस्तारा का चलाया। पर इथेनॉल से अगर एविएशन फ्यूल बन रही है तो इंटरनेशनल प्राइस के साथ मैच करके जब वो पूरा प्रूव होगा तो डिमांड और बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसी टेक्नोलॉजी ढूंढनी पड़ेगी कि हम कॉस्ट उसके बराबर रहे, और इंटरनेशनल प्राइस हमारे हाथ में नहीं है, कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी। तो मुझे लगता है कि नए नए ऑप्शंस, नए नए अल्टरनेटिव्स, नई नई टेक्नोलॉजी, जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ। तो इसके लिए आप सब इसमें काम करिए। दूसरा जो है कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ, इंपोर्ट को कम करना है तो ये आवश्यक है, और इंपोर्ट कम करना ये देश के हित में है, और एग्रीकल्चर में उसका फायदा होगा तो नया एम्प्लॉयमेंट खड़ा होगा तो एग्रीकल्चर ग्रोथ होगी। तो मुझे लगता है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच में फ्यूचर ब्राइट है। विश्व की परिस्थितियाँ हमें अनुकूल बनती जा रही है। ये अच्छा हो गया कि जो बातें लोगों को 100 भाषणों में और 10-10 साल में समझा के नहीं समझा सकते थे, वो 20-22 दिन के अनुभव से सब सीख गए। जो विरोध करने वाले थे वो भी सीख गए, क्योंकि वो आफत आ गई ना। जब मार्केट में जब ये मिल नहीं रहा था तब संकट आया। तब नेचुरल अभी पार्लियामेंट में 20 एमपीज ने इस पर ग्रीन फ्यूल का फोरम भी तैयार किया है। तो मैंने उनको कहा कि तुम एक काम करो, कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था महाराष्ट्र में, तो मैं अपोजिशन पार्टी के एमएलए को बुलाता था, क्योंकि मेरी बात कोई करनी है तो सेक्रेटरी 4 अडंगे तैयार करते थे। तो मैं बोलता था तू ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ मेरे को, फिर क्या होगा? अरे मतलब मैं हाउस पे अगर जवाब दूँ तो रिकॉर्ड बन जाता, फिर सेक्रेटरी मना नहीं कर सकता, ना एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता। मैं दन ठोक के जवाब दे देता था और रिकॉर्ड बनता था। और फिर सेक्रेटरी आके मुझे, सर अब देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। वेन जब आपने जवाब पटल पर दिया है तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर अस, मतलब यही बात बराबर है, आप करो। तो मैं बोला तुम पार्लियामेंट फोरम में क्वेश्चन डालते जाओ, और ये क्वेश्चन को सब डरते हैं। पार्लियामेंट में कोई भी क्वेश्चन आया तो मशीनरी ऐसी हिलती है पूरी, चाहे विधानमंडल में आए चाहे पार्लियामेंट में, सब दौड़ते क्वेश्चन लगा। तो सबसे पहले आप ये ग्रीन, आपका जो पूरा एनजीओ है, ये संस्था है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप उपयोगी पार्लियामेंट्री क्वेश्चन तैयार करके दो, ताकि ये लगा के रिकॉर्ड पे आ जाए और फटाफट जवाब मिल जाएगा, और फिर उसको पुश मिलता जाएगा। दूसरी बात, कितना भी हुआ तो ये लॉबिंग होता है, और लॉबिंग में जब किसी के वेस्टेड इंटरेस्ट को मारते तो किसी के, अभी मेरे खिलाफ भी क्यों लोग भिड़े इतने। अब मेरा तो इथेनॉल प्रोडक्शन ही नहीं, बहुत कम है, क्योंकि हमारा बॉटलिंग प्लांट है, 0.6% है उसमें, ना कोई फायदा है ना कोई ज़रूरत ही नहीं। पर वो इसलिए लगे सोशल मीडिया में कि पैसा दे के उन्होंने छपाया, वो पूरा मैनेज था कैंपेन। पर मैंने फिर ये शुगर फैक्ट्री वाले और इनको प्रश्न पूछा कि पैसे देकर उन्होंने मेरे खिलाफ इथेनॉल के लिए कैंपेन चलाया, तुमने क्या किया? बोले हमने कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारे लिए काहे के लिए काम करना? फिर तुमको एक पोस्ट डालने के लिए भी समय नहीं है, और मुझे बता रहे हो कि तुम ये करो। तुमने तो बोलना चाहिए कि ये गलत है,
AR है और सबके रिपोर्ट है, एक भी गाड़ी बिगड़ी नहीं। फिर गाड़ा खड़ी की, बिगड़ी हुई गाड़ी के फोटो निकाले। अभी कल एक लीडिंग न्यूज़पेपर के मुख्य संपादक का मुझे फ़ोन आया कि मेरी गाड़ी बिगड़ गई, जीप कंपनी की गाड़ी है, और मैकेनिक ने कहा कि ये इथेनॉल डालने के कारण ये गाड़ी बिगड़ गई। ये इथेनॉल का डिश, आप तो बोलते हैं देखो ये क्या हुआ। बोला तुम्हारी गाड़ी डीजल पर है कि पेट्रोल पर है? बोले मेरी गाड़ी डीजल पर है। अरे मैंने बोला भाई साहब, अरे डीजल में इथेनॉल डालते ही नहीं तो तेरे गाड़ी का हमारा क्या संबंध है। पर वो कैंपेन चला और कंप्लेंट करने वाला लोक सत्ता करके मराठी डेली का नागपुर का संपादक था, देवेंद्र गावंडेकर, नाम बता दो। बोले इथेनॉल के कारण मेरी गाड़ी बिगड़ गई। वो गाड़ी का कोई लेना देना नहीं था। तो आपको भी ये जवाब देना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फ्यूचर इज ब्राइट, इकोनॉमिक्स इज गुड, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के बारे में अवेयरनेस इज देयर। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट इज द नीड ऑफ द कंट्री, और एक्सपोर्ट अपने देश में तैयार करने से ग्रोथ में फ़ायदा है। और सबसे बड़ा है कि हमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अगर इकोनॉमिकली करनी है तो हमको एग्रीकल्चर के बारे में भी सोचना होगा। पर मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि ये जो विशेष रूप से कैफे नॉर्म आएंगे तो इलेक्ट्रिक और फ्लेक्स इंजन में कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा। ये कर्नाटक का जो इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट का, उसका एक रिपोर्ट हमने लाया और पावर सेक्रेटरी को मैंने वो रिपोर्ट दिया और मैंने कहा ये भी आप स्टडी करो। तो इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में 100% इथेनॉल में जाइए। 85 जा सकते आप, पर ये जाने में मैं बहुत थक गया हूँ अभी, और तुम्हारी तो ताकत ही नहीं है। हर डाल पर इतने विद्वान लोग बैठे बड़े बड़े, उनको कन्विंस करते करते ये रिटायर्ड हो गए, तुम भी अब रिटायर्ड हो गए चौधरी साहब के, तो ये करने मुश्किल है। 100% इथेनॉल, फिर आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप 100% पे जाइए, तकलीफ नहीं है। टेक्निकली 85, 65, 25, 35, अब एक बार हो गया अटल जी के समय, फिर वो करते करते कैसे कैसे है आपको पता है। तो इथेनॉल, आइसोब्यूटेनॉल एज ए 100% फ्यूल, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, और अभी अल्टरनेटिव फ्यूल में मिथेनॉल को भी कुछ जगह हुआ। अभी ये डीएमई में, डीएमई का कि अभी ये 7 to 8% एलपीजी में डालना, तो उससे एलपीजी का भी हमारा इंपोर्ट कम हो सकता है। तो हर जगह पर जहाँ जहाँ हम कर सकते हैं, हमें इंपोर्ट को कम करना है, प्रदूषण को कम करना है, इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है, स्वदेशी स्वावलंबन के आधार पर हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, और गांव गरीब मजदूर किसान, इसको भी सोचना होगा। ये तो वो किसान आत्महत्या करते जाएंगे तो इधर कैसे होगा। हाँ, वो मिथेनॉल को भी, अभी आसाम पेट्रोलियम ये 600 टन मिथेनॉल बनाता है, तो मैंने आसाम के मुख्यमंत्री को कहा कि तुम 22 रुपये लीटर देने के लिए तैयार है, तो मिथेनॉल के ट्रक और ये आसाम में और नॉर्थ ईस्ट में चलाइए। अभी बाम्बू से अगर आपको इथेनॉल बनाना है तो उधर आसाम में नुमालीगढ़ में शुरू हुआ है। कहीं ना कहीं अब परली आपके यहाँ है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में, तो यहाँ परली का उपयोग करिए। तो मुझे लगता है रीजन टू रीजन, स्टेट टू स्टेट रिक्वायरमेंट के हिसाब से सोचना होगा, और ये करते समय हमें सोसाइटी के सभी घटकों का विचार करते हुए इंटीग्रेटेड अप्रोच में हम सोचेंगे तो डिमांड बढ़ती जाएगी। और जैसा मैंने आपको कहा था कि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, फिर ये टेलीकम्युनिकेशन के टावर्स, धीरे धीरे ऐसे अनेक क्षेत्रों में हम इसका कैसा उपयोग कर सकते, तो नेचुरली डिमांड बढ़ती जाएगी तो सप्लाई बढ़ते जाएगा, और दोनों बढ़ते जाएंगे तो ग्रीन का जो सपना है वो पूरा होगा। इसकी शुरुआत आप लोगों ने की है, इसमें निश्चित रूप से हमें यश मिलेगा। इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इनिशिएटिव को देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। Thank you, Gadkari ji, always inspiring and enlightening. So a couple of formalities before we close this session. So I will request Dr. Vidya Murukumbi to please come forward and present the mementos to the chief guest and other dignitaries on the dais. So the first memento goes to Shri Nitin Gadkari ji. Dr. Vidya Murukumbi, please come.
So another memento to Shri Manoj Kumar Singh ji. दे दीजिए, इन्हीं को दे दीजिए मैडम को दे दो. And next, Vikram Gulati ji. Madam Sulajja Firodia Motwani. Hemant Kabra. And one to Shri Atul Mule ji. So we'll close the session, but I request Hemant Kabra ji, who is the founder, director of BIGOS, the RR Cable Group, to present the vote of thanks. He is also the vice president of Indian Federation of Green Energy, and he is into manufacturing of two-wheelers, electric two-wheelers. Hemant ji, please come. Thank you. On behalf of IFGE, I would like to thank Honorable Minister Nitin Gadkari ji to give such an encouraging speech. And I always say it's a frank speech, frank discussion which we have, and for all the youth in India and for the youth outside India. I think we all are big fan of you, sir, Nitin Gadkari ji. I would like to thank our guest of honor, Mr. Manoj Kumar Singh ji. I would like to thank Sulajja ji. I would like to thank Atul ji and Vikram ji for joining us and giving us a good narrative about how a green initiative is taking place in each of the field. And under the guidance of Sir Nitin Gadkari sir, we all are driving this particular force. I would like to say thank you to everyone on behalf of IFGE to do this. Before we end, I just also want to say thank you to the sponsors, because they are very important to drive such initiatives. I would like to thank Praj Industries, Toyota Kirloskar Motors, and Maruti Suzuki. I would like to thank, of course, BG Electric, and I would like to say support partners, AITWA and BOCI. Thank you for partnering with us on IFGE platform. I would like to thank knowledge partner, Built India, and I would like to thank you all the media partner, Aviation World, The Pioneer, Bharat Bio, Electric Compass. And lastly, I would like to congratulate IFGE and CRRI for the MOU which we signed today, and thank you so much for the initiative. Thank you everyone for coming, and thank you so much.